Let us remain standing just a moment now for prayer. Let's bow our heads. I wonder, in our congregation tonight, is there any here that would like to be remembered in prayer? Make your request known as we raise our hands to God. Our Heavenly Father, we are approaching Thy great holiness tonight in the name of the Lord Jesus, with this promise that if you ask the Father anything in my name, be granted. We know that's true because it's your word. We are here praying for your sick children, trying to see what we can do to encourage faith. I pray, Father, that you will encourage us greatly tonight. Grant every request that was made known by them hands. And maybe some had requests that didn't raise their hands. Father, I pray that they'll be granted too. Give glory out of our gathering together tonight. In thy name we pray. Amen. Be seated. I think I'm the one that's guilty of doing these in transposition. But I'm always afraid that my hoarseness, I don't talk loud enough. Can you hear me back at the back all right now? Way back, can you hear it all right? Yes, that's something. That's fine. Now, we are very happy to be here again tonight, just prior to this coming convention of the Full Gospel Businessman. We're looking forward for great blessings in that time. I pray that the Holy Spirit will do something among us tonight that will have us all up into the clouds, as it were, when the convention starts. And the convention is not our coming together just so much to meet each other, but we coming together in the power of the Holy Spirit. That's what brings the convention. We are coming to meet Him. That's our primary purpose of gathering is to meet Him. So glad tonight to see on the platform many of my friends that's begin together. Brother Roll, I met Brother King, and Brother Brown, your Brother Clayton, also everyone. They're all my friends. And these fine ministers in the city here that I have had this fellowship with for many years. And we are certainly thankful for each one of them. And now, I don't know just what the schedule is, but I have, for the services, with men here like Brother Brown and these men to speak, I'm sure you're going to be blessed with preaching in time of the convention. I've kind of made a little vow that instead of holding the people so late, I could put more time praying for the sick. Everyone, perhaps, has been in the meetings. They know the nature of the meetings. They know what takes place. Therefore, I don't feel that I'm among strangers or someone who doesn't know the little type of ministry that the Lord has given me today. So I'm just going to make my message very simple each night and try to make it 30 minutes when I've been making 2 hours. So that's quite a difference. It's kind of hard when you get started on a thought, then you have to turn it away. But trying to leave a little testimony of things that's taken place. Tomorrow night closes our 3 services before the convention, praying for the sick. Last night I had to leave quite a few that I didn't get to pray for. We had the prayer line last evening, and the Lord gave us a great response to it. Wonderful. I believe that many, many people were healed. But I had to leave many of them holding their cards yet. So I promised that I would pray for them tonight. And that's what I aim to do. And then tomorrow night, while we'll pray for the rest, the Lord willing. Now, we're going to turn in the scriptures to a पवित्र वचन, कुछ थोड़े से वचन जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जिसके लिए मैं, यदि मैं चाहूँ, इसे मूल पाठ कहूँगा। मैं नहीं जानता कि मूल पाठ कहूँ या नहीं, परंतु एक विषय के लिए मैं इसको विचार के लिए लेना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन अविश्वास से पूरी रीति से अलग होने के लिए बुलाता है। और अब मैं बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति का 13वां अध्याय, और पढ़ने के लिए हम 5वें पद से आरंभ करेंगे।
मुझे वचन पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैं कहता हूँ असफल हो सकता है। ये मनुष्य के वचन हैं, परंतु यदि मैं बस इस वचन को पढ़ूं जो वो कहता है, असफल नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं जानता हूँ कि इससे भलाई ही निकलेगी यदि वचन के पढ़ने से अधिक ना करें। 5वां पद, हम 13वें अध्याय को आरंभ करते हैं। और लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरों को नाश नहीं किया था। तब तक सुआर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। अब ये विचार कि परमेश्वर का वचन पूरी रीति से अलग होने के लिए बुलाता है, हम केवल वचन के द्वारा पढ़कर ये जानते हैं और देखते हैं। वचन स्वयं प्रकट हुआ। अब आरंभ में उत्पत्ति 1:3 में हम पाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अंधकार था, और परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडराता था, और कहा कि उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा था। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। इसलिए परमेश्वर के वचन ने आरंभ से ही उजियाले को अंधियारे से अलग कर आरंभ किया। इसलिए ये आज के दिन तक वैसा ही है। जैसा कि कल रात्रि मैंने यीशु के लिए कहा, जब वो केवल 12 वर्ष का था और गलती करते हुए कि वो उसकी माँ है, जिसे कि लोगों के द्वारा दावा किया गया कि वो परमेश्वर की माँ, और कैसे उस स्त्री ने कहा, क्यों तेरा पिता और मैंने तुझे आंसुओं के साथ ढूंढा, और तुरंत वो वचन होने के नाते बोला, क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरे पिता के कार्य में होना अवश्य है? देखिए, वो उसका यूसुफ का पुत्र होने की घोषणा कर रही थी, परंतु वो यूसुफ का पुत्र नहीं था। यदि वो यूसुफ का पुत्र होता तो वो उसके संग होता, परंतु वो पिता के साथ उसके कार्य में था। इसलिए वचन सदा सुधार करने वाला और सही होता है, और वचन सदा हर गलती को ठीक करता है। अब पृथ्वी, जो परमेश्वर पृथ्वी का प्रयोग करने जा रहा था, और ये पूरी रीति से अंधकारमय थी, परमेश्वर का आत्मा बोला और कहा, उजियाला हो जा, और उसने उजियाले को अंधकार से अलग किया, और वो उसे तभी से कर रहा है, उजियाले को अंधियारे से अलग कर रहा है। परमेश्वर का वचन आरंभ में पानी को भूमि से अलग करता है। परमेश्वर बोला और पानी भूमि से अलग हो गया। इसलिए इसका एक कारण था। परमेश्वर कभी भी वचन नहीं बोलता है जब तक कि वचन को बोलने का कारण ना हो। वो आपकी और मेरी तरह नहीं है। हम बस, या विशेषकर मैं, जो बहुत सी मूर्खता की बातें बोलता हूँ। परमेश्वर हर वचन को एक अर्थ के साथ बोलता है, और कुछ जो वो पाने का यत्न कर रहा है, और वो अपने वचन के द्वारा पाएगा, और ये ठीक वही करेगा जो उसने कहा ये करेगा। अब यदि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वहाँ उजियाला नहीं था, तब वो नहीं था। ये परमेश्वर ने नहीं कहा था,
समझे? जब परमेश्वर कोई बात कहता है तो जो वो कहता है उसका समर्थन करना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन प्रमाणित हो गया वो उजियाला है। अब वचन स्वयं तब तक उजियाला नहीं जब तक वो उजियाला प्रमाणित न हो जाए। यदि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए और वहाँ उजियाला नहीं था तो फिर ये परमेश्वर का वचन नहीं था। परंतु जब उजियाला पृथ्वी पर प्रकट हुआ ये प्रकट हुआ कि वचन सिद्ध हुआ है और ये उजियाला था। अब आज यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है और जब ये प्रतिज्ञा सिद्ध हो गई तो फिर ये उजियाला है। ये उस दिन का उजियाला है जब वचन समर्थित हुआ और उस घड़ी का वचन सिद्ध हुआ। तब परमेश्वर के पास एक पृथ्वी होने जा रही थी क्योंकि वो उस पर पेड़ पौधे उगाने जा रहा था। वो पृथ्वी पर लोगों को लाएगा। और फिर उसने कहा और पानी समुद्र से अलग हो गया। तब भी उत्पत्ति में उसने अलग किया जीवन को मृत्यु से। अब यदि हम परमेश्वर के वचन का विश्वास करते हैं तो ये हमारे लिए जीवन का वचन है। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन पर प्रश्न करते हैं तो ये हमारे लिए मृत्यु है। परमेश्वर बोला तो कौन इसका इनकार कर सकता है, समझे? और यदि हम परमेश्वर के वचन पर प्रश्न करते हैं तो ये मृत्यु हो जाता है। जैसा कि अब हवा ने परमेश्वर के वचन के एक छोटे भाग पर प्रश्न किया और इसने क्या किया? सारी परेशानियों का कारण हुआ जो हम पर है। यदि वो वचन के पीछे ही बनी रहती, वचन के पीछे किला बंद रहती, परमेश्वर का पूरा अस्त्र और इसका अविश्वास नहीं करती तो ये कभी भी इस प्रकार से घटित ना होता जैसे ये है। ये इस प्रकार से कभी नहीं होता। परंतु आप देखते हैं वहाँ मृत्यु आ गई। तब परमेश्वर के पास छुटकारा भी था। हम पर दयालु होते हुए उसने बदले में मृत्यु को स्वीकार किया। उनकी मृत्यु के बदले में जो कि दोनों, उसने अदन वाटिका में जीवन को भी मृत्यु से अलग कर दिया और उसने ये अपने वचन के द्वारा किया। और आज वो यही चीज करता है। जब हम पूरी रीति से अंधकार में थे, जैसा कि मैंने रविवार को बोला, देश में अंधकार, लोगों पर और घोर अंधकार, और इस सब के मध्य में वो अब भी जीवन का वचन उनके लिए बोल रहा है, वे जो इसका विश्वास करना चाहते हैं। और अब हम ये पाते हैं कि यदि यीशु ने हमें निरंतर ये बताया है कि एक अलगाव है, और हम पाते हैं कि मानव जाति के लिए अंतिम बात जिसकी भविष्यवाणी की गई है, उस महान अंतिम दिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर जाते हैं, वो अंतिम अलगाव होगा। वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। परमेश्वर निरंतर ही अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, और यही वो आज रात्रि कर रहा है। यही जो वो सदा करता है, ये आप हर सभा में देख सकते हैं। वो विश्वास को अविश्वास से अलग करता है। उसने बोला, उसने स्वयं को उन पर प्रकट किया जो उस पर विश्वास करेंगे और उसमें विश्वास करेंगे। अब हम गिनती के 6वें अध्याय में पाते हैं एक नजीर की बुलाहट, नजीर की बुलाहट। उन्हें स्वयं को सारे संसार से अलग करना था परमेश्वर के वचन के लिए। यही एक नजीर की बुलाहट है, अलग किया गया। हम पाते हैं कि समसून प्रभु के लिए एक नजीर था और वो अलग था चिन्ह के द्वारा। और ये चिन्ह ये था कि उसे अपने बाल लंबे रखने थे 7 लटों के साथ। ये उसके अलग होने का चिन्ह था क्योंकि वो एक उद्देश्य के लिए बुलाया गया था। और मैं इसे आरंभ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कहा कि मैं कुछ मिनटों के लिए बोलने जा रहा हूँ। परंतु मैं सोचता हूँ कि आज जब हम अपनी बहनों को लंबे बाल रखे देखते हैं, जैसा कि बाइबल ने कहा उन्हें चाहिए, मैं सोचता हूँ कि ये नजीर का चिन्ह है कि वे प्रभु का अनुकरण करना चाहती हैं। और मैं जानता हूँ कि ये सीधा है और मैं चाहता हूँ कि ये अंदर बैठ जाए। देखिए, क्योंकि यही है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई करना चाहता है, करिए कुछ जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा। कोई मतलब नहीं क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। वहाँ संसार ने इसके विषय में बोलना है या कितना ठट्टा या हंसी करने वाले आलोचना जो कि उस व्यक्ति को परेशानी करते हैं जो पूरी रीति से संसार से अलग हो गया है परमेश्वर की बातों के लिए। वे वचन को मानेंगे और स्वयं को संसार की चीजों से अलग करेंगे क्योंकि वचन उनको अलग करता है।
मैं जानता हूँ वे आलोचना में स्थिर हैं, परंतु यदि हमारी आलोचना नहीं की जाती है तो फिर कुछ गड़बड़ होगी। संसार सदा अपनों को जानता है, परंतु जैसा कि मैंने कहा कि स्मरण रखें, परमेश्वर के वचन के आधार पर आलोचना उसके अनुग्रह के लिए केवल यही बढ़ते हुए कष्ट ये दर्शाता है कि आपने स्वयं को मसीह होने के लिए अलग कर लिया है। एक के समान व्यवहार करना, एक के समान जीना, परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करना, और ये नजीर की प्रतिज्ञा है कि अलग हो। परमेश्वर की बुलाहट आपको संसार की चीजों से अलग करती है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज रात्रि हर पुरुष और स्त्री, हर लड़का और लड़की जो कि परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है, प्रभु के लिए नजरीन है, क्योंकि वे स्वयं उन चीजों से अलग हो गए हैं, संसार की चिंताओं से और जो भी संसार ने कहना है। आप यहाँ इस नगर में रहते हैं जहाँ बड़े बड़े विद्यालय हैं और आप देखते हैं हमारा राष्ट्र उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बुलाता है, जो कि ठीक है, इस विषय में कुछ नहीं कहता, परंतु ये शिक्षा आपको उद्धार नहीं दे सकती। एक वैज्ञानिक गेहूं के बीज को फाड़ सकता है और बता सकता है कि इसमें कितने भिन्न प्रकार के रसायन हैं, परंतु वो इसमें का जीवन नहीं ढूंढ सकता जो उसमें है। एक शिक्षा आपको सिखा सकती है, यह आपको गणित पढ़ाती है और ये आपको इतिहास पढ़ा सकती है और जो कुछ हो, परंतु ये आपके पास उजियाला नहीं ला सकती। आपकी शिक्षा ये नहीं करेगी। परमेश्वर के पास एक ही मार्ग है कि आपके पास उजियाला लाए, कि जब आप स्वयं को संसार की चीजों से अलग करने को तैयार हों और संसार की सारी चिंताएं और के परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन से लगे रहें। पौलुस प्रभु के लिए नजीर था। वो अपने रूढ़िवादी कलीसिया से अलग हो गया जीवित परमेश्वर के वचन के लिए। हारून प्रभु के वचन के लिए नजीर था। वो अपने भाइयों के मध्य से अलग हो गया कि जन्म के पत्थर को धारण कर और महायाजक बने। ये पूर्णतः अलग होना है। हमें अब और संसार में वापस नहीं जाना है या संसार से कुछ मतलब रखना है, परंतु केवल परमेश्वर के संग लगे रहना है। यीशु एक दुल्हन, एक स्त्री, एक कलीसिया जो संसार की चीजों से अलग हो गई है या संसार की चिंताओं से उसके लिए आ रहा है। वो इस आधुनिक युग जिसमें हम रह रहे हैं उससे अलग हो गई है। वो संसार की चिंताओं और कलीसिया के रीति रिवाजों से अलग हो गई है। वो केवल परमेश्वर के लिए अलग हो गई है और परमेश्वर वचन है। और जैसे पति और पत्नी एक हैं, उसी प्रकार से दुल्हन और वचन एक हो गए हैं। क्योंकि वचन दुल्हन के द्वारा जीवित है, ये उसका प्रमाण पत्र है, ये उसका पहचान पत्र है। यदि मैं एक पीएचडी या एलएलडी ले सकूं और आपको अपने किसी निश्चित संस्था या विद्यालय के प्रमाण पत्र दिखा सकूं, वो विद्यालय उन प्रमाण पत्रों को मान्यता देगा। परंतु विश्वासी के लिए केवल एक ही प्रमाण पत्र है कि परमेश्वर का वचन उसमें जीवित है। इस बात की घोषणा कर रहा है कि यीशु मसीह उस व्यक्ति में जीता है। ये प्रभु का अलग किया हुआ नजीर है, वचन के लिए अलग किया हुआ। बाइबल ने कहा परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से अधिक तेज है, हड्डी के गूदे गूदे को वार पार छेदता है और हृदय के अंदर के विचारों को जांचता है। यही कारण था कि यीशु लोगों को देखकर और उनके विचारों को मालूम कर सका कि वे क्या सोच रहे थे। वो वचन था। अब पहला आदम संसार में जन्मा था या नहीं जन्मा, परंतु परमेश्वर के द्वारा सृजा गया। पहले आदम ने स्वयं को वचन से अपनी पत्नी के लिए अलग किया। अब वो वचन के साथ रह सकता था यदि वो चाहता, परंतु उसने स्वयं को वचन से अलग किया कि अपनी पत्नी के संग रहे। ठीक यही साधारण शारीरिक कलीसिया का सदस्य आज करता है। स्वयं को सत्य जीवन वचन से अलग करता है कि अपनी कलीसिया को पकड़े रहे। जहाँ की हवा ने वचन पर प्रश्न किया कि परमेश्वर दंड देगा या नहीं, शैतान ने प्रश्न रखा, हवा ने इसका विश्वास किया। और जब आज कलीसिया ने परमेश्वर के वचन पर प्रश्न किया, क्या वो एक सा है? क्या वो अब भी अपनी कलीसिया में रह रहा है और अपने चिन्ह और आश्चर्य कर्म कर रहा है जो उसने जब वो यहाँ पृथ्वी पर था किए थे, जो कि उसने हमसे संत यूहन्ना 14:12 में इतनी निश्चित प्रतिज्ञा दी है। वो जो मुझ पर विश्वास करता है तो जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो इससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, उनसे होंगे।
आज लोगों से ये प्रश्न है, क्या वास्तव में उसका ये अर्थ था? और जब आप वो स्वीकार करते हैं जो कलीसिया कहती है, क्या वास्तव में उसका ये अर्थ है? तब जब आप स्वयं को उसी स्थिति में रखते हैं जिसमें आदम ने रखा और स्वयं को कलीसिया की स्त्री से जोड़ लेते हैं, इस संसार से, और स्वयं को परमेश्वर की आशीषों से जो उसने प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रतिज्ञा दी है, वो स्वयं को संसार से अलग होकर वचन से जोड़ लेगा। अब ये सत्य है। हमारे पास आज के दिन में जीवित रहने का सौभाग्य है कि जब परमेश्वर का वचन, जिसे हम प्रत्येक युग के लिए जो ठहराया गया देख चुके हैं, कुछ निश्चित चीजें जो घटित होनी हैं, जब ये ठहराया हुआ भाग कभी कभी मनुष्य आश्चर्य करता है कि ये कैसे होने जा रहा है। प्रोफेसरों और अपने विचार हैं, परंतु उन युगों में परमेश्वर ने सदा अपने नबी भेजे और प्रभु का वचन नबी के पास आता है और वचन को उस पीढ़ी के लिए प्रमाणित करता है। और भविष्यद्वक्ता सदा नजीर होते थे, हर चीज से अलग होकर परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए। क्या आपको स्मरण नहीं पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? क्या हमारे लिए ये ठीक है कि हम मनुष्य की माने या परमेश्वर की? जब उन्होंने उनसे पेंतिकोस्त के अनुभव के विषय में प्रश्न किया। अब पहले मनुष्य ने स्वयं को अलग किया। पहले आदम ने वचन से कि अपनी पत्नी के संग जाए। ये प्रश्न हुआ कि परमेश्वर ने अपने वचन को बनाए रखा या नहीं। गुनगुने का क्या सिद्ध उदाहरण? आज शारीरिक विचारों वाला विश्वासी जो कि अब भी उन्हीं रीति रिवाजों से चिपका रहना चाहता है जो वे कहते हैं, बजाय कि जो वचन कहे वो ले। बहुत ही वास्तविक प्रतीक। वो अपनी पत्नी के लिए अलग हो गया था। शारीरिक विश्वासी वचन से अलग हो गया, कलीसिया से मिल गया। परंतु जब दूसरा आदम स्त्री के गर्भ में उत्पन्न किया गया था और संसार में आया, वो परमेश्वर के वचन के लिए नजीर था। वो संसार से अलग किया गया था वचन के लिए। अब इब्रानियों का 7वां अध्याय 26वां पद हमें बताता है कि वे याजक निरंतर मरते रहे, परंतु ये यीशु पवित्र था और पापियों से अलग किया गया। आप अविश्वास है, उसमें कोई भी अविश्वास नहीं पाया गया, कहीं भी नहीं। जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, उसने कहा, पाप के लिए मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? पाप अविश्वास है। यदि मैंने वो नहीं किया जिसकी भविष्यवाणी इस युग के लिए की गई, यदि जो मसीह को करना है मैंने वो नहीं किया है, तो फिर मेरा विश्वास मत करो। कहा, पवित्र लेखों में खोजो, उनमें तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और वे वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं, तुम्हें बताते हैं कि वो कौन है। क्यों? अदन से इसकी भविष्यवाणी हो रही थी कि एक बचाने वाला आएगा। भविष्यद्वक्ता ने कहा वो कुंवारी से जन्म लेगा, और कैसे वो इमैनुएल कहलाएगा, और वो युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर भी होगा। और उन्होंने उस पर इसी का दोष लगाया कि स्वयं को परमेश्वर बनाता है। वो परमेश्वर था, और वो था शांति का राजकुमार, शक्तिमान परमेश्वर, और वो सदा काल का पिता। उसे छोड़ और कोई पिता नहीं है। आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ, केवल वही पिता है, हम सब का पिता। और हम पाते हैं सारे विश्वासी, वो उन सब का पिता है जो उसके वचन का विश्वास करेगा, क्योंकि वो कलीसिया से पूर्णतः अलग हो गया, उसके रीति रिवाजों से, उसकी माँ से, संसार से, और केवल वही किया जिससे पिता प्रसन्न हुआ। अब वो आदम से भिन्न व्यक्ति था। कोई मतलब नहीं किसने क्या प्रश्न किया उससे। वो वचन, वो पहले ही सदा से वचन था। उसने ये सिद्ध कर दिया कि वचन सही था। जब शैतान ने उसके लिए इस पर लीपापोती करने का यत्न किया और कहा ये लिखा है, उसने कहा हाँ, और ये भी लिखा है। वो वचन पर शैतान के आमने सामने खड़ा हुआ, क्योंकि वो वही था वचन। बाइबल में पहला यूहन्ना, संत यूहन्ना पहला अध्याय ने कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ था और हमारे मध्य में डेरा किया। वो कल, आज और सदा एक सा है। परमेश्वर के बोले हुए वचन से इसका सदा संबंध रहा है, उस दिन के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और जब ये आता है, ये इतना चलन के विरुद्ध होता है कि यहाँ तक लोग कठिनाई से समझ पाते हैं, क्योंकि हम अपने ही प्रकार के और विचारों में इतने गुथे हुए होते हैं कि हमारे लिए ये कठिन होता है कि सच्चाई क्या है उसे पकड़ें। मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ यूसुफ पर लागू होता है उन दिनों में जब मरियम गर्भ धारण की स्थिति में थी।
वो माँ बनने वाली थी और यूसुफ ने उससे प्रेम किया और वो विश्वास करना चाहता था। वो धर्मी व्यक्ति था, भला मनुष्य, और वो उस कहानी का विश्वास करना चाहता था जो मरियम उसे बता रही थी। पर अब भी वहाँ एक प्रश्न था। अब वो एक भली स्त्री थी, कोई संदेह नहीं। मरियम ने उसे जब्राइल से मिलने का वर्णन कर दिया था और वो दाऊद के वंश में एक धर्मी मनुष्य था। और फिर भी ये ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उसे ढाल के समान प्रयोग कर रही है कि अपनी बदनामी से बचे, क्योंकि यदि उसके साथ मंगनी हो गई थी और इस स्थिति में पाया जाना व्यभिचार के समान था। व्यवस्था विवरण हमें ऐसा बताती है और इस व्यवहार के लिए वो पथरवा होगी, और ऐसा प्रतीत हुआ वो उसे ढाल के समान प्रयोग कर रही है। और एक मनुष्य, एक भला मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य था। बाइबल ने कहा, परंतु उसका मामला चलन के इतने विरुद्ध था कि वो इसे समझ ना सका। उसने उसके सुंदर मुख की ओर देखा होगा और निष्कपटता और ईमानदारी जो वो अपनी उस कहानी में बता रही थी, कोई संदेह नहीं वो उसके घर जाएगा या अपनी बढ़ई की दुकान पर। कहता, मैं समझ नहीं सकता वो कैसे मुझसे गलत कहेगी, परंतु मामला इतना चलन के विरुद्ध है। यदि उसने केवल पवित्र लेख में खोजा होता कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखिए ये उसके लिए इतना विरला था क्योंकि ये उसके विचार से परे था, परंतु वो ठीक पवित्र वचन में थी। और इसी प्रकार से आज है भाइयों, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ और इस घड़ी का उसका प्रतिज्ञा किया हुआ वचन चलन से इतना विरुद्ध था कि भला पुरुष इससे ठोकर खाता है। ये इतना अधिक विरला है। वे कहते हैं मृतक जी उठे थे, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, पवित्र आत्मा विचारों को परखता है, घटित होने वाली बातों को पहले से बताता है, एक बार भी असफल नहीं हुआ, और वे इसे नहीं समझ सकते। ये इतना चलन के विरुद्ध है, इसलिए वे कहते हैं, अच्छा ये टेलीपैथी है या ये प्रेत आत्मा है, जैसा उन्होंने उन दिनों में किया। परमेश्वर के वचन का विरलापन। परंतु जब एक मनुष्य संसार में जन्मा, एक विश्वासी के लिए वो एक नजीर हो गया, जब वो स्वयं को किसी भी वस्तु से अलग करता है जो वचन के विरुद्ध है, एक पूर्ण अलगाव। यीशु ने कहा, मैं मनुष्य को उसकी पत्नी से अलग करने आया हूँ, परिवार को तोड़ने, और वो जो अपनी क्रूस नहीं उठाएगा और मेरे पीछे चलेगा, वो मेरा कहलाने की योग्य नहीं। हर चीज, किसी भी चीज से अलग, कलीसिया से, बिरादरी से, एक विश्वास से या परिवार या कुछ भी जो आपके और परमेश्वर के समस्त वचन के बीच में हो। यदि आपका प्राण इस घड़ी के प्रत्येक प्रतिज्ञा पर आमीन से पूर्ण विराम न लगाएगा तो कहीं कुछ गड़बड़ है। आपको अलगाव की आवश्यकता है। इसलिए यीशु वचन देहधारी था और वो पूरी रीति से पापियों से अलग था, अविश्वासियों से, कि वचन स्वयं ही पूर्णतः उमड़ा और पूरी रीति से उसमें होकर बहा, कि उसने कहा, मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि मैं पहले पिता को करते ना देख लूं। वे उससे पूछ रहे थे, चीजों के विषय में प्रश्न कर रहे थे। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं में कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते देखता है, और हर चीज को देखता है। जो उसने कहा सिद्ध था। उसे इस विषय में पूछना नहीं था, इस विषय पर सोचना। ये सिद्ध था, और उसका सिद्ध सत्य सदा सत्य को गलत से अलग करता है। यहाँ तक कि जैसे मैं इसका फिर से उल्लेख करूंगा, उसकी माँ ने कहा, तेरा पिता और मैं उन याजकों के सामने जिसकी उसने गवाही दी कि ये कुंवारी से जन्मा पुत्र है। परंतु दुख की घड़ी में कैसे एक 12 वर्ष का लड़का, और उनके पास उसका कोई अभिलेख नहीं है कि वो विद्यालय में भी था, उसकी बुद्धि इतनी महान कैसे हो सकती है कि वो याजकों से विवाद करे, संतों से, सुशिक्षित मनुष्य से। और क्यों, कब उसने इस यूसुफ को उसका पिता कहा, तुरंत ही परमेश्वर के वचन ने वो अलग हो गया था। वो वचन था और वचन ने गलती को ठीक कर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के कार्य में होना चाहिए? वो एक छोटा 12 वर्ष का लड़का नहीं था, वो वचन था। परमेश्वर इस छोटे बालक के मुंह से बोल रहा था कि गलती को ठीक करे, अलग कर रहा था, जैसा कि उसने आरंभ में किया था, अंधकार को उजियाले से,
झूठ को सत्य से, मृत्यु को जीवन से। ये अलगाव है। वचन सदा कुल और पूरा अलगाव मांगता है, चाहे जो हो। यीशु ने कहा, हर मनुष्य का वचन झूठा हो और मेरा सच्चा। इन सारे युगों में होते हुए यही चीज घटित हुई। ये अलग होना है। वो सदा अपने लोगों को अविश्वास से अलग करता है। उसने ये आदि में किया, आज भी वो वैसा ही करता है। हर एक भविष्यद्वक्ता अविश्वास से अलग किया गया। कारण उन्होंने ये किया क्योंकि प्रभु का वचन उनके पास आया। अब मैं विश्वास करता हूँ एक रात्रि कहीं, संभवतः यहाँ रविवार या बीती रात्रि, जो कि मैं बोल रहा था कि वचन क्या है। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता का अर्थ, इसका अर्थ एक मनुष्य, एक देवीय, एक मनुष्य जो भविष्य की घटनाओं को बताता है जो घटित होने को थी, और जब वे ठीक घटित होती, बिना असफलता के ठीक वैसे ही घटित होती जैसा उसने कहा, तो परमेश्वर ने कहा उस मनुष्य की सुनना या उसको सुनो, उससे डरो क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। तब उसके पास लिखे हुए वचन का अनुवाद था, क्योंकि वही उसका प्रमाण पत्र है पहचान का कि वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, और वचन उसके पास आया। ये ठीक बात है। अब अलगावकरण, ये यशायाह को कलीसियाई संसार से अलग करता है। ये मूसा को कलीसियाई संसार से अलग करता है। ये सारे महान भविष्यद्वक्ताओं को अलग करता है युगों में होते हुए कलीसियाई संसार से, क्योंकि इसने यीशु को उसके भाइयों से अलग किया। इसने प्रेरितों को उस दिन की कलीसिया से अलग किया। फरीसी, सदूकी, महान व्यक्ति, पवित्र लोग, भले मनुष्य, अच्छे मनुष्य, नम्र लोग जिनके पास आत्मा के फल जो यीशु ने अभ्यास किए उससे अधिक थे। परंतु उसका प्रमाण पत्र क्या था? वचन उसके साथ था। उस दिन की वचन की प्रतिज्ञा उसके द्वारा जी रही थी। उसने कहा, तुम में से कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहराता है? तुम में से कौन ये कह सकता है जिसका मैंने दावा किया घटित नहीं हुआ? कि क्योंकि उसने दर्शाया कि वो प्रभु का अलग किया हुआ नजीर था। वो स्वयं में देह में प्रभु था। अब्राहम भी वो भी संसार से अलग किया गया व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को 75 वर्ष की आयु में बुलाया, अपने आप को अपनी बिरादरी से अलग कर और सारे अविश्वास से, और उस संसार में आ जा जिसमें तू पहले कभी नहीं चला, उन लोगों के मध्य में जिनको तूने पहले कभी नहीं जाना। बाहर आ और अपने को किसी से भी अलग कर जो तू विश्वास कर रहा है उससे भिन्न है, ताकि तू प्रभु के लिए नजीर होगा, क्योंकि वो पुत्र की प्रतिज्ञा को थामे हुए था। उसे अपने पिता से अलग होना था, अपनी माँ से, अपने रिश्तेदारों से। और किसने उसे अलग किया? इसलिए नहीं कि वो एक भला मनुष्य था, परंतु क्योंकि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में सक्षम है जो उसने उसे दी। और 75 वर्षों बाद जब वो था और बालक अभी तक नहीं आया था, सारा 90 की और वो 100 का था, और जब प्रभु का सरदूत उससे मिलने आया, जिसका यीशु ने उल्लेख किया कि ये अंत के दिनों में आएगा, परमेश्वर मनुष्य के रूप में उसके सामने बैठा और बातें की, और सारा लगभग 100 वर्ष की आयु की उसके पीछे तंबू में हंसी, क्योंकि सरदूत ने कहा, मैं प्रतिज्ञा के समय के अनुसार फिर आऊंगा। और उसने कहा, मैं बूढ़ी और मुझे अपने स्वामी के साथ फिर सुख मिलेगा, देखते हुए कि वो बूढ़ा है। और ये मनुष्य जो कि परमेश्वर देह में था, बोला, सारा तंबू में क्यों हंसी? अब वो घूमी और इसका इनकार करने का यत्न किया, परंतु उसने कहा, हाँ, परंतु तू हंसी थी, क्योंकि उसने इसका विश्वास नहीं किया कि ये ठीक बात हो सकती थी। अब ध्यान दें, यीशु ने कहा, ये फिर से आएगा। जैसा कि ये सदोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। परमेश्वर का आत्मा फिर से मरणहार मनुष्य की देह पर आएगा। इस मनुष्य ने बछड़े का मांस खाया, गाय का दूध पिया, और मानव देह में मक्खन और रोटी खाई। और अब्राहम ने कहा, वो एलोहिम था, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। यीशु ने प्रतिज्ञा दी कि परमेश्वर अपने आगमन से पहले फिर से मानव देह में प्रकट होगा। ये पवित्र आत्मा है
केवल एक ही परमेश्वर है, स्वयं को प्रकट कर रहा है, अलग कर रहा है। फिर से लूत को अब्राहम से, लूत ने संसार को चाहा, परमेश्वर ने उसके संसार को और अब्राहम को, लूत को अलग कर दिया। लूत फिर से शारीरिक विश्वासी, जिसने नहीं सोचा कि ये बातें सत्य थी, वो बस सदोम में चला गया और उसके पास वास्तव में साहस नहीं था कि खड़ा हो, जैसा कि हम कहते हैं, और कहते हैं जो सही था वो सही और जो गलत है गलत है। इस प्रकार से वो नीचे चला गया। ये सारे विश्वासी, जैसा कि हम घंटों इस पर जा सकते थे, ये सारे आपकी जेब की चिल्लर के समान थे जो परमेश्वर के हाथों में है। आप अपनी जेब से चिल्लर निकालते हैं, उसमें पाई, 10 पैसे, 20 पैसे, चवन्नी, आधा डॉलर, डॉलर, सब सिक्कों में है। अब ऐसे ही संसार है परमेश्वर के हाथों में। कुछ लोग हैं, उनकी पाई जैसी कीमत है, परमेश्वर उन्हें केवल पाई के समान प्रयोग कर सकता है। वे बस उतना ही खरीद सकते हैं। उनको अस्वीकार न करें। यदि वे वास्तविक सत्य का विश्वास नहीं कर सकते, उन्हें छोड़िए नहीं, उन्हें बाहर न निकालें और कहें कि तुम इसमें नहीं हो, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर पाई को भी प्रयोग करता है। लूत बस एक पाई था, अब्राहम चांदी का डॉलर। इसलिए ये 100 लूतों को लेगा कि एक अब्राहम बने, और इसी प्रकार से लेगा। 100 शारीरिक विश्वासी कभी भी एक वास्तविक मसीह के सामने कभी नहीं खड़े होंगे, जो कि संसार की शारीरिक वस्तुओं से अलग हो चुका है और यीशु मसीह में जीवित है, जहाँ से कि वचन उसके द्वारा बह सकता है। वो केवल एक पाई की कीमत रख सकता है, उसके पास केवल यही है। इसलिए आप देखते हैं कि लोग जो कहते हैं मैं चंगाई में विश्वास नहीं करता, इन बातों का विश्वास नहीं करता, बस जान लो ये एक पाई है, परंतु उसे अकेला छोड़ दो। समझे? पाई की कीमत इस प्रकार से वो यही खरीद सकता है। उसे ना रोकें, उसे छोड़ दें, दुश्मन रखें, वो केवल इतना ही आगे जा सकता है। यूसुफ अपने भाइयों से अलग किया गया। जी हाँ, मेरा अर्थ इस प्रकार से नहीं था जिस प्रकार से मैंने ये कहा। मेरा अर्थ, यदि वो ठीक है, मैं इससे हूँ और हम यही जो विश्वास करते हैं, ये बस एक पाई है। आगे बढ़िए, देखिए, बस एक पाई। कहें ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई। देखिए वो तांबा है, वो कभी भी चांदी नहीं हो सकता, यही है। इसलिए उसे आगे जाने दें, परमेश्वर उसको प्रयोग कर सकता है। ओह, वो इसका प्रयोग कर रहा है। मैं उसे नीचे एक कलीसिया में देखना चाहूंगा, बजाय इसके कि शराब खाने के कोने में खड़ा हो। क्या आप नहीं चाहेंगे? निश्चय ही। इसलिए उसे छोड़ दें, परमेश्वर उसको प्रयोग कर सकता है। जो भी हो सकता है, बहुत नहीं, परंतु वो प्रयोग करेगा। वो प्रयोग कर सकता है, जितना भी वे उसका प्रयोग करे, उसे करने दो। इसलिए ये किसी चीज को प्रकट करने का एक प्रकार से असभ्य विधि है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आप सत्य को, जो मेरा अर्थ है, समझ गए हैं कि इसका क्या अर्थ है। समझे? वो विचारों को परखने और परमेश्वर की सामर्थ, जिसकी प्रतिज्ञा आज के दिन के लिए की गई है, विश्वास नहीं कर सकता। वे फरीसी ये नहीं कर सके, कोई भी। वे यीशु को परमेश्वर होते हुए नहीं देख सके। ओ नहीं, तू स्वयं को परमेश्वर बनाता है, एक मनुष्य। उनके लिए रोटी के टुकड़ों को कई गुना आदि करने के बाद एक दिन वो वहाँ खड़ा हुआ था। उसने कहा, जब तक तुम ना खाओगे मनुष्य के पुत्र की देह की रोटी और उसका लहू पियो, तुम में जीवन नहीं। ओ, मैं कल्पना करता हूँ उसकी एक भक्त मंडली, वे उसे छोड़कर चले गए। ये मनुष्य हमसे आशा करता है कि हम नरभक्षी हो जाएं, किसी का मांस खाएं। ओ, ये पागलपन है। डॉक्टर और चिकित्सक, डॉक्टर लोगों और आदि ने कहा ये मनुष्य पागल है। वहाँ बस यही है, याजक सही है, वो मनुष्य पागल है, हमें अपनी देह खाने को देता है। बस उसने यही कहा। देखिए, परंतु आत्मिक मस्तिष्क संभव है वे इसे न समझ सकें। वे चेले नहीं जान पाए कि क्या इसका क्या सही अर्थ क्या है, परंतु जो भी है, उन्होंने इसका विश्वास किया। क्योंकि ये कहाँ से आया? ये उस एक से आया है। वे इसे परमेश्वर का पुत्र करके जानते हैं। मैं हो सकता है जो इसमें है समझने योग्य ना हूँ, परंतु मैं इसका विश्वास करता हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। मैं इसके विरुद्ध कुछ भी हो, उससे अपने आप को अलग करना चाहता हूँ। मैंने इसी प्रकार से खड़े रहने का यत्न किया है। ध्यान दें, दूसरा झुंड, वे 70 उसने बुलाए। एक दिन वो खड़ा हुआ, उनसे बातें कर रहा था और उसने कहा, मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में जाएगा जहाँ से वो आया है। उन्होंने कहा, ये मनुष्य, ये हमें वहाँ ले गया था जहाँ वो जन्मा था। हम इसकी माँ मरियम को जानते हैं, क्यों हम इसके भाइयों को जानते हैं, हम सब जानते हैं। और फिर ये मनुष्य लेने जा रहा है, मनुष्य का पुत्र आ रहा है, ऊपर स्वर्ग को जा रहा है जहाँ से वो आया। वो बैतलहम से आया। उसने ये कैसे किया? उसने ये इस प्रकार से कहा, देखिए, और वे उसके साथ फिर ना चले। वे चले गए। उन्होंने कहा, ओ, ये मनुष्य हम जानते हैं, इसके साथ कुछ गड़बड़ है। वे चेले ठीक वहीं पर बैठे थे। समझे? उन्होंने विश्वास किया,
उन्होंने उस दिन का प्रतिज्ञा का वचन देख लिया था, उसके द्वारा प्रमाणित और प्रकट किया गया। कौन उत्पन्न कर सका? केवल स्वयं परमेश्वर की रोटी ले सकता था, और वे जान गए कि वो परमेश्वर का पुत्र था। भले ये पहली थी या नहीं, चाहे वे इसे समझ सके या नहीं, जो भी हो, वे सीधे गए, क्योंकि वचन प्रमाणित था और वे जो भी इसके विरुद्ध था उससे अलग हो गए थे। इस प्रकार के विश्वास के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम विश्वास करते हैं कि ये बाइबल सत्य है। संभव है मेरे पास पर्याप्त विश्वास न हो कि सारी प्रतिज्ञाओं घटित करूं, परंतु जो भी है मैं इसका विश्वास करता हूँ। जिस घड़ी में हम रह रहे हैं मैं विश्वास करता हूँ। यूसुफ बिना किसी कारण अपने भाइयों से अलग हो गया। अब उसके साथ क्या मामला था? वो अलग नहीं होना चाहता था, उसकी ये इच्छा नहीं थी कि वो अलग हो, परंतु उन्होंने स्वयं को ही अपने आप को उससे अलग कर लिया। देखिए, उसके डॉलर की चमक से उनके पाई की कीमत के सामने नहीं टिक सकी। वे जानते थे कि वे पूर्वज थे। वे जान गए थे कि इसहाक उनका, मुझे क्षमा करें, यानी याकूब उनका पिता था, और वे जानते थे कि ये सत्य है। परंतु यूसुफ जन्मा था, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। वो आत्मिक था। उसने दर्शन देखे, सपनों का अनुवाद कर सका, और वे पूरी तरह से सही थे। उसने जो भी कहा वो सत्य था। और उसके बड़े भाइयों में द्वेष भर गया और उसे मिस्रियों के हाथ बेच डाला। देखिए, उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर लिया, क्योंकि वे पाई थे, वो भिन्न गुणवत्ता का था। ऐसे ही आज वास्तविक विश्वासी है, वो भिन्न प्रकार के गुणों वाला है। वे स्वयं को अलग कर लेंगे। वे इसे नहीं समझते तांबा चांदी से। अब हम पाते हैं कि वे द्वेष से भर गए और उसे बेच दिया। क्यों? वे आज भी यही करते हैं। कहा वे ये द्वेष था। वे टूटना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो गुण उनमें थे वो गुण नहीं था जो उसमें था, और इसी कारण से वे द्वेष रखते थे, क्योंकि वे पाई थे और वो डॉलर था। समझे? अब यदि पाई ये कहेगी, प्रभु का नाम धन्य हो, मेरा डॉलर भाई यहाँ है। देखिए, मैं वो बदलाव नहीं ला सकता जो वो है, परंतु मैं वही बनूंगा जो मैं हो सकता हूँ। यही वो बात है। तो फिर हम साथ साथ चलेंगे। परमेश्वर अपनी योजना पूरी करेगा। जैसा कि मैंने आपको रविवार में प्रचार किया, परमेश्वर का स्वर संगति का वचन बज रहा है। बदलाव और मिलान केवल परमेश्वर के बदलते समय, जैसे कि स्वर संगति में निर्देशक। जब हम युगों के बदलाव और समयों के बदलाव को देखते हैं, उस संगीत के पर्चे पर देखो और आप पाएंगे कि हमें यहाँ पर होना चाहिए। उन्हें ये करना ही है। उनके पास कोई विधि नहीं है कि उससे अलग हो जाएं। और किसी मनुष्य के लिए संगीत जो स्वर संगति को नहीं समझ सकता, ये क्या है? ये शोर करने वालों का एक झुंड है। वो इसे नहीं जानता, वो इसमें रुचि भी नहीं रखता। वो चाह रहा है, मैं चाहता हूँ ये बंद कर दें ताकि मैं घर जा सकूं। वो रुचि नहीं रखता, क्योंकि वह स्वर संगति को नहीं समझता, वो इसे नहीं जानता। परंतु रचने वाला अंत को आरंभ से ही जानता है। समझे? और यदि निदेशक और रचयिता एक आत्मा में नहीं है, तो वो इसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चिन्हों के द्वारा किया जाता है। और यदि चिन्ह इसे प्रकट ना करे, तो संगीतकार कैसे इसे बजाने जा रहा है? आमीन, यही बात है। यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन जान पाएगा कि युद्ध के लिए कैसे तैयार हो? वापस जाना या क्या कर रहे हैं? वचन को देखें और देखें हम कहाँ पर जी रहे हैं। तब आप देख सकते हैं पाइयां वे क्या करते हैं, परंतु आप उनको देख सकते हैं जो चमक रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और वचन जानते हैं, और इन चिन्हों को घटित होने की राह देख रहे हैं। यही है। जैसा कि वो छोटी स्त्री कुएं पर, जब उसने कहा जा अपने पति को बुला कर ला, उसने कहा मेरे पास कोई नहीं है। कहा ये ठीक बात है, तेरे 5 हुए। उसने कहा श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे पास सैकड़ों वर्ष से नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि मसीह आ रहा है और वो एक भविष्यद्वक्ता होगा, वो यही करेगा। उसने कहा मैं वही हूँ। वो स्वर संगति बिल्कुल ठीक बज रही थी, नीचे से ऊंचे तक। वो नगर को भाग गई और कहा आओ एक मनुष्य को देखो। उसने जो मैंने किया मुझे सब बता दिया। क्या यही तो मसीह नहीं जिसकी हम राह देख रहे थे? निश्चय ही। देखिए, वो समझ गई स्वर संगति में संगीत का परिचय क्या है। ये विश्वास को अविश्वास से अलग करता है। केवल विश्वास सकता है, ये कलीसिया के द्वारा नहीं आता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है, जानते हुए कि ये क्या है। अब आज हम वहीं पर वही चीज पाते हैं। बहुत से लोग वरदानों को देखते हैं। अब बंद करते हुए और 5 मिनट। लोग वरदानों को देखते हैं और वे सोचते हैं ओह क्या ही महान बात है,
और वे वरदानों की नकल करने का यत्न करते हैं। आप ये नहीं कर सकते। आप एक पाई को डॉलर में नहीं बदल सकते। आप इसको डिम में नहीं बदल सकते। देखिए, इसे चवन्नी नहीं बना सकते, ये पाई है। परंतु यदि आप आपको एक पाई के समान पहचानोगे और बाकी चिल्लर के साथ जाते हैं, देखिए, परमेश्वर आपको प्रयोग कर सकता है। हम सब कुछ करने के योग्य नहीं हो सकते। वहाँ हर कोई नहीं था। जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला तो हर कोई वो नहीं कर सकता था जो मूसा कर सकता था, परंतु उन्होंने इसका विश्वास किया। ये ठीक बात है। उन्होंने मूसा का विश्वास किया क्योंकि वे जान गए थे कि वो इस घड़ी का चिन्ह था और परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया था कि उसके पास उसका वचन है। उन्होंने कहा फिरौन के पास भाले हैं, उसने कहा परंतु मूसा के पास उसका वचन है। यही है, फिरौन के पास फौज हो सकती है परंतु मूसा के पास वचन था, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त रखता था और वचन उसके पास आता है। और ये प्रमाणित हो गया था कि ये सत्य था। वो जीवित परमेश्वर था जो कि धूल को लेकर और ऊपर फेंक कर और कुटकियां बुला सकता था। एक मनुष्य ये नहीं कर सकता। एक मनुष्य के समान वहाँ खड़ा हुआ था और कहा कल लगभग इसी समय ऐसा ऐसा होगा, और ये था। समझे, वे जान गए मूसा के पास परमेश्वर का वचन था। कोई मतलब नहीं कितने भाले और कितने कारागार फिरौन के पास थे और कितनी ईंटें बनानी थी, मूसा के पास वचन था, इसलिए उन्होंने जंगल को प्रस्थान कर दिया। वहाँ एक व्यक्ति दातान था, बोला मूसा अपने ऊपर बहुत कुछ लेता है, हम सब पवित्र लोग हैं, इसलिए जो मूसा ने किया हम सब वो करने के योग्य हैं। और मूसा ने कहा परमेश्वर इस विषय में क्या है? उसने कहा अपने आप को अलग कर, उनसे अलग हो जा। और उसने धरती खोल दी और दातान और उसके झुंड को निगल गई। उसने ज्योति को अंधकार से अलग किया। अपने वचन को प्रमाणित करने के द्वारा आज भी वो वही परमेश्वर है। बंद करते हुए, मैं पिछली रात्रि आपको बता रहा था जब मैं पहले यहाँ आया, ये व्यक्तिगत नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो अपने हृदय पर पर्दे खींच लें। मैं ये उन लोगों से कह रहा हूँ जो विश्वास करते हैं। ये बोला गया था और ठीक ठीक बताया गया था कि क्या क्या बातें इस युग में घटित होंगी, और आप सब इसके गवाह हैं। जैसे कि आपने पिछली रात्रि विचारों को परखे जाने की गवाही दी और कैसे नकल करने वाले होंगे, नकल कर रहे हैं और हर चीज घटित हो रही है। परंतु अंतिम बात, एक महान बात घटित होगी। हम इसकी प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि पहले ये कब घटित हुई, जब सृष्टि अस्तित्व में आई तीसरी बार और फिर चौथी बार। पिछली रात्रि मैंने आपको बताया 5वीं बार ये हुआ, और ये कलीसिया की समिति की प्रतीक्षा कर रहा है जब ये मिलते हैं। और प्रोटेस्टेंट, यदि मैं रविवार प्रातः बोला जो कि मैं चाहता हूँ, मेरा अर्थ शनिवार प्रातः, यही जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। अब देखिए, और जब ये एकत्र होते हैं तब परमेश्वर का आत्मा सदा इसके विरोध में एक मानदंड खड़ा करता है। समझे, यहाँ आज रात्रि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि इसका गवाह है। बहुत समय नहीं बीता, कोलोराडो में था इस पिछले शरद में। मैं वहाँ शिकार यात्रा के लिए जाता हूँ, और जैसा कि प्राय मैं वहाँ अपनी विवाह की वर्षगांठ पर होता हूँ। जब मैंने और पत्नी ने विवाह किया था, मैंने अपने पैसे बचाए थे और आदि आदि, और अपने कार्य से, और उन्हें बेकिंग पाउडर के डिब्बे में रखा। और मेरे पास इतना नहीं था कि मधु यामिनी पर जाता और शिकार पर जाता, इसलिए मैंने दोनों को मिला दिया और उसे शिकार यात्रा पर मधु यामिनी के लिए ले गया। इसलिए तब से लज्जा से मैं कभी भी विवाह की वर्षगांठ पर उसके साथ घर नहीं रहा। मैं कोलोराडो में था। पिछली रात्रि मैंने 2 या 3 सेवकों को देखा था जो मेरे साथ वहाँ पड़ाव में थे, जहाँ मुझे अलास्का से नीचे आना था और उनसे मिलना था शिकार के लिए। ये मार्टिन लड़के थे, वे यहाँ गत रात्रि थे। वे यहाँ हैं, ठीक वहाँ पीछे, और वो छोटा वाला, मैं उसका नाम भूल गया, बैठा हुआ है। सनी, क्या तुम भी वहाँ थे? ये ठीक बात है। और हो सकता है भाई पामर यहाँ पर हैं, और हम पहाड़ों में थे, और मैं कोलोराडो में मार्गदर्शक हूँ। मैंने वहाँ वर्षों शिकार किया है, और हर बार हमारी वर्षगांठ 23 अक्टूबर आती है। वहाँ एक छोटा सा स्थान है जहाँ मैं अपनी पत्नी को मधु यामिनी पर ले गया था, वहाँ एडिरोनोडेक पहाड़ों पर। और ये स्थान ऐसा दिखाई पड़ता है, हिलने वाला सर्प यहाँ है, छोटा सा जंगल और भोज वृक्ष। और मैं वहाँ 23 को पहुँचा दिन में किसी समय। मैंने अपनी टोपी उतारी और प्रभु को धन्यवाद दिया। एक अच्छी ईमानदार पत्नी जो कि मेरे लिए वफादार और मेरे लिए इन दिनों में बहुत प्रेमी रही और मेरी सहायता की, जैसे कि मैं सुसमाचार प्रचारने को जाऊंगा। और इस वर्ष कोलोराडो में भयंकर सूखा था, जैसे कि सारे इलाके में था। और अचानक से वहाँ पर मैं समझता हूँ कि 200 व्यक्ति या 100 व्यक्ति हमसे आगे थे, क्षमा करें, 100 व्यक्ति हमसे आगे पड़ाव के ऊपर थे। और वे वहाँ 4-5 दिनों से शिकार कर रहे थे। और मैंने एक हिरन मारा, एक ही जिसे मैं वर्षों से मार रहा था। और परंतु मैं नीचे कोहरा आ गया और मैं उसे देख नहीं पाया, मैं उसे ढूंढ नहीं सका। और उस दिन मैं उसी का शिकार खेल रहा था। और अगले दिन फोन यानी रेडियो पर आया
बर्फ की आंधी आ रही है जो कि एक ही रात्रि में इन पहाड़ों पर 20 फीट बर्फ गिरा देगी। और इसलिए मैंने भाइयों से कहा, मैंने उन्हें अंदर बुलाया। मार्टिन लड़के भी वहाँ पर थे। मैंने कहा, भाइयों, आपने सुना कि रेडियो ने क्या कहा? यदि तुम जाना चाहते हो तो अच्छा है अभी, क्योंकि फिर देर होने जा रही है। तुम्हें यहाँ एक सप्ताह के लिए रुकना पड़ सकता है और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अगले सोमवार मेरी एक सभा है, क्रिश्चियन बिजनेसमैन, फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन चैप्टर ट्यूसन में। जो भी है, अपना चुनाव करो। यदि तुम टिकना चाहते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। हर एक ने मत दिया, हम रुकेंगे, हम रुकेंगे। मार्टिन लड़कों के पास कम गति का ट्रक, या बल्कि तेज गति का ट्रक था। वे सारे, हमारे पास कुछ एक हिरन और थे, हमने वो मार्टिन भाइयों को दे दिए और वे चले गए, क्योंकि वे बाहर नहीं निकलेंगे। बस इस प्रकार से वे यहाँ आज रात्रि एक गवाह के रूप में बैठे हुए हैं। और फिर अगले दिन मैंने सोचा, ठीक उस दिन बर्फ नहीं गिरी जिस दिन वे गए। मैंने कहा, मैं पत्नी को फोन करने जा रहा था और उसे बताया, मैं एक अच्छी पत्नी के लिए धन्यवादित हूँ और सब कुछ, ये उसकी वर्षगांठ है। और फिर कल मैं उस स्थान पर जाऊंगा यदि हम वहाँ बर्फ के लिए पहुँच पाए। और इसलिए मैं अंदर गया और मैंने उसे फोन ना कर सका। मैं वापस आया, नगर में हर कोई तैयारी में था और एक बड़ा बर्फ का तूफान आ रहा था। अखबार ने कहा कि कोलोराडो में उस रात्रि 20 फुट बर्फ पड़ सकती है। आज रात्रि भाई टॉम सैमसन यहीं कहीं उपस्थित बैठे हैं, या होना चाहिए। वे कनाडा में थे और अपने रास्ते नीचे जा रहे थे और वे इसके पास से निकल गए। वो कोलोराडो के एक ओर से निकल जाओ, बड़ा बर्फ का तूफान। भाई सैमसन, क्या आप यहाँ पर हैं? आप कहाँ हैं? हाँ, वहाँ पीछे बैठे हैं, पीछे वहाँ। और उन्होंने उन्हें बताया, कोलोराडो के एक ओर से निकल जाओ, एक बड़ा बर्फ का तूफान आ रहा है। इसलिए मैंने बहन को बताया, दूसरे व्यक्ति की पत्नी को, भाई इवान की। मैं नहीं सोचता कि आज रात्रि भाई इवान यहाँ हैं, जब तक कि वे आए ही ना हों। भाई इवान, क्या आप यहाँ हैं? मैं नहीं सोचता कि वे अभी तक आए हैं, यद्यपि वे यहाँ पर बेदारी सभा में होंगे। इसलिए मैंने उनकी पत्नी को फोन किया और मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी से संपर्क नहीं कर सका, वो बाहर दुकान पर गई है। और मैंने कहा, उसे कहना कि भाई टोनी स्टोमी से कहे, जो कि चैप्टर के अध्यक्ष थे, यदि मैं वहाँ रविवार को ना हूँ तो दूसरे वक्ता को तैयार रखें, क्योंकि संभव है मैं यहाँ से बाहर ना निकल पाऊंगा। मैं इन लोगों के साथ हूँ। तब फिर क्या घटित हुआ? उस रात्रि बर्फ नहीं गिरी। अगली सुबह बादल बहुत नीचे और गुस्से में थे। मैंने कहा, अब भाइयों, मैंने यहाँ वर्षों पशु चराए हैं और मार्गदर्शन किया है। वर्षा की पहली छोटी बूंद के पड़ते ही जितनी जल्दी हो पड़ाव पर वापस हो लेना, क्योंकि 15 मिनट में आप अपना हाथ नहीं देख सकेंगे। 2-3 दिन तक उस समय बवंडर वाली बर्फ की आंधी जो वहाँ 9000 फीट पर थी। और मैंने कहा, तुम बर्फ के तूफान में होगे और तुम खो जाओगे और तुम यहाँ पहाड़ों में मर जाओगे। अब हम बाहर जाएंगे। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को ठीक स्थान पर रखकर और मैं ऊपर चोटी पर चला गया और मैंने कहा, अब यदि मैं वापस आने के लिए मेरी प्रतीक्षा मत करना, जल्दी करो, जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो। वर्षा की पहली बूंद, जल्दी ही पड़ाव की ओर दौड़ो, क्योंकि वापसी के लिए तुम मार्ग नहीं ढूंढ पाओगे। उन्होंने कहा, वे करते हैं। मैं ऊंचे पर चढ़ा, भेड़िया चारों ओर शोर मचा रहा था और मैं जान गया कि मौसम बदलने जा रहा है। तब एकदम से हवा का धमाका हुआ और बर्फ गिरना आरंभ हो गई और मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि हर कोई वापस हो गया। मैंने सोचा हुआ और चारों ओर घूम कर देखा। मैंने सोचा, मेरी इच्छा थी कि वापस जाने से पहले मैं एक हिरन ढूंढ लूं, क्योंकि बर्फ उसे ढांक लेगी और फिर वसंत तक वे फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने सोचा, मैंने हिरन के शिकार के लिए बहुत मेहनत की और ये पहला हिरन था जिसे मैंने कभी इस प्रकार से पाया। जब से मैंने ये छोटी बंदूक ली है, इससे शिकार के 55 सिर। और मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं इस प्रकार से जाना पसंद नहीं करता। और एक ही क्षण में एक बड़ी बर्फ की बूंद चवन्नी जैसी दिख रही थी और हर तरफ गिर रही थी। हवा चलनी शुरू हो गई और मैं कठिनाई से देख पा रहा था इस चोटी पर से कैसे हटूं। और मैं इस पर्वत श्रेणी पर रुकना जानता था और यदि मैं नीचे गया और छोटी नदी पर पहुंच गया, मैं छोटी नदी पर तब तक जाऊंगा जब तक पैदल के छोटे पुल को ना पहुंच जाऊं। तब मैं अपने मार्ग का अनुभव करके ऊपर जाऊंगा और जब मैं वहां ना पहुंचूंगा जहां तंबू थे, केवल यही विधि है कि मैं निकल सकूं। और इसलिए मैंने सोचा, यदि मैंने कभी एक मार्ग पर या दूसरे पर चलना आरंभ करूं तो आप फिर कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस प्रकार से आप वहीं मर जाएंगे। इस प्रकार से मैंने पहाड़ से उतरना आरंभ कर दिया और मैं लगभग मैं समझता हूं मैं 300 गज चला हूँगा या 400 वहां से जहां से मैं था। अब ये विचित्र सा लगता है, परंतु यहाँ बाइबल मेरे सामने है। स्वर्गीय पिता मेरी गवाही रखता है। मैं लगभग दौड़ रहा था, वहाँ से जाने के यत्न में था और हवा बहुत तेज चल रही थी और मैं अपने सामने लगभग 20 फीट देख सकता था। उन झाड़ियों में था, हवा से पेड़ बल खा रहे थे और आवाज ने कहा, रुको, वहीं वापस जाओ जहाँ से आए हो। मैं रुक गया। मैंने सोचा, हो सकता है ये हवा की आवाज हो
मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था और मैं कुछ क्षण के लिए रुका और एक लड़के ने मेरे लिए सैंडविच रख दिया था और मैंने इसे निकाला और ये वास्तव में सैंडविच था और मैं वर्षा हो रही थी और पसीने आ रहे थे। ये रोटी का बड़ा भाग, उसमें कहीं मांस था। मैं थोड़ा सा भूखा था, जो भी है मैंने इसे खाया और मैं वहाँ खड़ा हुआ था और मैंने छोटे कागज के टुकड़े को गाड़ा, इसलिए कि जानवर उन चीजों को देखेगा और कोई भी चीज जो सभ्यता वे दौड़ते हैं दूर चले गए। मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा और मैंने सोचा ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आरंभ किया और जैसे स्पष्ट आवाज आप मेरी सुन रहे हैं, किसी चीज ने कहा घूमो और वहीं वापस जाओ जहाँ से आए हो। कैसे परमेश्वर मुझसे ये कह सकता था कि मृत्यु के फंदे में चला जा। मैं वहाँ 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ और सोचा ये वही है जिसने उन गिलहरियों के विषय में कहा था, उसी के विषय में मैंने आपको पिछली रात्रि बताया था, अपनी पत्नी के विषय में। एक आवाज, एक मनुष्य की आवाज, उसी ने मुझे बताया जब मैं छोटा लड़का था, कभी भी ना पीना, ना धूम्रपान करना, और ये बातें अंत के दिनों में होंगी। परमेश्वर, और मैं ये सब बाइबल को अपने हृदय पर रखकर बता रहा हूँ। ये मेरा क्या भला करेगा यदि मैं कुछ भी आपको गलत बताऊं, और जानते हुए कि मैं अपने प्राण को नरक में भेज रहा हूँ। समझे, ये सत्य है, ये असाधारण है, परंतु ये सत्य है। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा उस आवाज का पालन करना मैं भली प्रकार से जानता हूँ। मैं क्यों चाहूंगा, मेरे लिए उसके पास कोई कारण होगा कि वहाँ जाऊं। संभव है ये मेरे जाने का समय हो, इसलिए मैं घूमा और उस जंगल में से होते हुए अपना मार्ग लिया जब तक मैं वहाँ फिर से अवतल पर्वत पर नहीं पहुँच गया। वहाँ ऊपर संभव है 300 गज 400 या 400 ऊपर, सीधा ऊपर पहाड़ पर फिर से इस प्रकार से। तब उस समय वहाँ इतना घना था, मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। हवा पेड़ नीचे को लगा रही थी और लहरा रहे थे। मैंने अपनी बंदूक ली, मैंने लाल कमीज पहन रखी थी और लाल टोपी। मैंने बंदूक रखी, कोहरे से बचाई, उसकी दूरबीन, क्योंकि भालू आदि ऐसे समय में घूमते हैं, ऐसे ही सिंह, और यदि मैं एक के पीछे भागूंगा तो दूरबीन में सब धुंधला हो जाएगा। और मैंने इसे इस प्रकार से पकड़ लिया, अपने सामने नहीं जहाँ ये धुंधली हो जाती, परंतु कोहरे को इससे बाहर रखा और बर्फ से गीली, और मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि वो क्यों चाहता है कि मैं यहाँ ऊपर आऊँ। मुझे बहुत ही संदेह लगा, मैं नीचे अब अपना मार्ग खोज सकता हूँ। बहुत ही भयानक स्थिति में था। मैं केवल लगभग 10 या 15 फीट देख सकता था और उस समय के साथ और खराब हो रहा था। ठीक है, मैंने सोचा अच्छा, उसने कहा वापस आओ। कुल मिलाकर ये जानता हूँ कि यहाँ बैठा हूँ। और तब बर्फ लगभग 1 इंच या 1.5 इंच, संभव है 2 इंच रही होगी जमीन पर। ये लगभग 20 या 30 मिनट हुए थे और ये बहुत तेज थी, ये इसे भी उड़ा रही थी। और मैं बस वहाँ पर बैठा हुआ एक क्षण निकला, मैंने एक आवाज सुनी। उसने कहा मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। मैंने अपनी टोपी झटकी और मैं शांत बैठ गया और मैंने फिर से सुना। मैंने सोचा ये हवा नहीं थी, ये बहती हवा शोर मचा रही है। और मैंने इसे फिर से सुना, कहा मैं वही हूँ जिसने सामर्थी सागर पर हवा को शांत कर दिया। मैं ही सृष्टि करता हूँ। मैंने तेरी उपस्थिति में गिलहरियों की सृष्टि की, मैंने ये चीजें की। मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं आपका विश्वास करता हूँ। कहा अपने पैरों पर खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया अपने पैरों पर। उसने कहा अब तूफान से कहे, ये वही करेगा जो तू इससे करने को कहेगा। अब ये सत्य है। जब मैं आपसे न्याय पर मिलूंगा, मुझे इन सब बातों का उत्तर देना होगा। मैंने कहा तूफान अपने स्थान पर चला जा और रुक जा, और सूर्य और तू 4 दिनों तक साधारणतः चमक। और मैंने इससे अधिक ना कहा कि बर्फ के ओले जो कि मुझे नीचे उड़ा देने पर थे एकदम से रुक गए और 1-2 क्षणों में सूर्य मेरे ऊपर चमक रहा था। मैंने पहाड़ों के पार देखा। मैं देखता हूँ कि पूर्व की हवा आती है। हवा पश्चिम से आ रही थी, पूर्व की हवा आई और इधर से आ रही थी, और मैं देख सकता था कि बादल भेदपूर्ण रीति से, वे कहाँ गए मैं नहीं जानता। और मैं वहाँ कुछ क्षण खड़ा रहा। मेरी सफेद दाढ़ी पर से आंसू बह रहे थे और मैंने सोचा परमेश्वर कैसे, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैंने सोचा ठीक है, मैं समझता हूँ कि भाई लोग वहाँ सब तंबू में होंगे और सूर्य चारों ओर चमक रहा है। और मैंने पहाड़ से नीचे चलना आरंभ किया और सारी बर्फ सूख रही थी। उस गर्म सूर्य से मेरी कमीज से भाप उड़ रही थी, 1 या 2 क्षण का अंतर। मैंने पहाड़ से नीचे उतरना आरंभ किया और हो गया। मैंने एक आवाज को कहते सुना, तू क्यों नहीं मेरे साथ चलता है। मैंने कहा प्रभु महानतम सौभाग्य
जो कभी मुझे मिला। मैं घूमा और बड़े हिरणों की पगडंडी के सहारे नीचे उतरने लगा उस पवित्र जंगल से होते हुए। और मैंने सोचा ठीक है, मैं उस मार्ग से नीचे जाऊंगा जहां मैं सदा मेढ़ा अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देता हूं। और बाद में मैं लगभग आधा या पौना घंटा से चला जा रहा था। सारी बर्फ उड़ गई और चली गई थी और मैंने सोचना आरंभ किया। मैंने आश्चर्य किया कि उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा मेरे जाने के विषय में। मैंने कहा मुझे याद है जब मैं पहली बार उसे वहां ले गया और उन लट्ठों पर से उसे उठाया, और जब हम विवाहित थे। मैंने कहा अब उसके बाल सफेद हो गए हैं। मैं चला गया, मेरी सफेद दाढ़ी काली सफेद मिली जुली। मैंने सोचा बिल अब तेरे पास अधिक समय नहीं है, तू बूढ़ा हो रहा है। और मैं आगे बढ़ने लगा और मैंने ऊपर देखा। ऐसा लगा मैं उसे वहां अपने सामने खड़े देख सकता था, अपनी बाहें बाहर निकाले, अभी भी काले बाल। मैंने अपना सर नीचे कर लिया और मैं छोटे से स्थान में से जा रहा था जहां बोलने वाले विषैले सांप और वहां एक छोटा सा मोड़। मैंने अपना सिर जरा सा झुकाया डाली के सामने इस प्रकार से, और मैं वहां खड़ा था, रो रहा था। मैं सुन सकता था कि कोई चीज पट 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 करके जा रही है। और मैंने नीचे देखा और ये आंसू मेरी आंखों से टपक रहे थे, मेरी दाढ़ी में से होते हुए उन सूखी पत्तियों पर गिर रहे थे जहां लगभग 30 मिनट पहले 1 इंच बर्फ थी और बर्फीली आंधी। जब 4 दिन के बाद मैं पहाड़ से नीचे उतरा, 4 दिन से आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं नीचे आया और मैंने तेल भरने वाले से कहा क्या सुंदर सूखा दिन। हाँ, कहा आप जानते हैं कि विचित्र बात, उस दिन तूफान की भविष्यवाणी थी और आप जानते हैं ये एकदम से रुक गया। और फिर मैं न्यू मैक्सिको की पंक्ति में नीचे उतरा, वापस एरिजोना जा रहा था। और मैंने अपने पुत्र बिली से कहा, मैंने कहा आओ हम इधर चलें और जरा देखें यदि ये इस ओर था। मैं वहाँ रुक गया। ये रविवार की प्रातः थी, कुछ मेरे पास कुछ ईंधन था। और उस मनुष्य ने कहा अच्छा शिकार कर रहे थे। मैंने कहा हाँ श्रीमान, कुछ भाग्य से। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान, हमारा अच्छा समय था। मैंने कहा सुंदर सूखा दिखता है। और उसने कहा जी हाँ, यहाँ बहुत ही सूखा रहा। उसने कहा हमें उस दिन बहुत ही बर्फ पड़नी थी, भविष्यवाणी दी गई थी। और कहा आप जानते हैं कि बर्फ की आंधी वास्तव में आरंभ हुई और कुछ ऐसा हुआ कि ये चली गई। ओह प्रभु, ओह प्रभु। मैं इस पेड़ के एक और टिका खड़ा था, इस पेड़ के एक और खड़ा था और आंसू मेरी आंखों से गिर रहे थे। मैंने सोचा परमेश्वर, जरा सोचिए वही परमेश्वर जिसने कहा शांत रहे और रुक जा, उन लहरों से और हवा ने उसकी मानी, वो अब भी वही परमेश्वर हमारे साथ इस जंगल में है। वो अब भी वचन है। वो वचन सारी सृष्टि को उसका वचन मानना है क्योंकि वो प्रकृति का सृष्टि करता है। मैं वहाँ खड़ा रहा, आंसू मेरे गालों पर से गिर रहे थे। अब लगभग 5 वर्षों से कार्य क्षेत्र से अलग बस कलीसियाओं में जा रहा हूँ या जो भी कर सका, आप लोग सब जानते हैं। और मेरे हृदय पर बोझ था, मैं बाहर जाऊंगा और एरिजोना आऊं और वो मुझे करने के लिए बातें बताएगा। मैं इसे करने के लिए जाऊंगा, परंतु ऐसा दिखता है कि बेदारी हो चुकी, मैं नहीं कर सका। आश्चर्य है कि क्या घटित हो रहा था। मैं अपने हृदय में पछताया। मैं कहूंगा प्रभु यदि मैंने कुछ किया हो तो मुझे बताएं, मैं उसे ठीक करूंगा। सारे समय बोझ रहा, बस भयानक सी अनुभूति, और मैं वो जय नहीं पा सका जो मैं चाहता था। उसने बहुत सी महान बातें करी और दर्शाई जिसके आप सब गवाह हैं, यहाँ आ रहे हैं और आपको इस विषय में बता रहे हैं, देख रहे हैं कि अखबारों में ये हैं और पत्रिकाओं में और आदि आदि, उस महान अलौकिक बात के विषय में चीजें जो देखी गईं और हुई। परंतु मेरा हृदय अब भी भारी था और मैं झाड़ी की ओर झुका हुआ था इस प्रकार से। और मैंने सोचा स्वर्ग का महान परमेश्वर मुझ पर सूर्य की गर्म चमक, कहीं भी और कोई बादल नहीं है। कुछ क्षणों पहले आपने मनुष्य के वचन का खंडन किया, प्रकृति ने ये किया। प्रभु ये कैसे किया जा सकता था? यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। ये उसका वचन था जो कि बस आपने मुझे बोलने दिया। मैंने सोचा पिता मैं कितना आभारी हूँ। मैंने सुना कुछ जा रहा था और मैंने देखा ठीक मेरे सामने 2 हिरन खड़े थे और वे मुझे देख रहे थे। पिछले सप्ताह वे हिरन मारे गए थे, वहाँ वे शिकारी थे और यहाँ मैं लाल कपड़े पहने हुए था। कोई भी जानता है वे इतनी जल्दी निकल गए, परंतु वे मुझे देख रहे थे। और हिरन खाने के लिए वहाँ इससे अच्छा नहीं हो सकता था। ये बड़ी हिरनी थी, 2 बड़े पूरे बच्चे। और मैंने सोचा ये बिल्कुल ठीक है, हमें 3 हिरनों की आवश्यकता है। किसी चीज ने कहा तुम जानते हो कि प्रभु ने इन्हें तुम्हारे हाथों में रखा है। परंतु जब मैं फुल गॉस्पल वाले लोगों के साथ, भाई क्लिंटन लगभग 1 वर्ष पहले वो हमारे साथ गए, जब मैंने वो बड़ी कीर्तिमान मछली पकड़ी, उस वर्ष में मैंने व्यक्ति के लिए एल्क के 19 सिर मारे। कभी कभी व्यापारी, मेरे भाइयों से क्षमा करें, इनमें से कुछ डॉक्टर हैं और आप जानते हैं कि वे चल नहीं सकते और मोटे हैं, आप जानते हैं, और बहुत से डेस्कों पर बैठ गए हैं। वे कहते हैं बिली मेरे लिए 1-2 वर्ष का और मेरे लिए नीलगाय, मैं हिरन चाहता हूँ, मेरे लिए पूरा भर के, मेरे लिए वहाँ की शिकार की जुबली,
एल्क आदि मिल रहे थे, परंतु प्रभु ने मुझे कहा कि ये नहीं करना, और मैंने उससे प्रतिज्ञा की वहाँ कैलोराडो के बर्फानी तूफान में। उससे 1 वर्ष पहले मैंने कहा, प्रभु मैं शिकार में लोगों की अगुवाई करूंगा, परंतु लोगों के लिए शिकार नहीं करूंगा, नहीं, जब तक कि आपात स्थिति ना हो, और हमें इसे लेना था। और लड़कों, यदि आप लोगों को स्मरण हो, वो रात्रि इसके पहले हम निकलते, निर्धन बेचारा बूढ़ा, वहाँ उसे हिरन नहीं मिला, क्या नाम है उसका, पामर, घूम कर आए और मेरे हाथ में $10 दशमांश रख दिया। उसने कहा, भाई ब्रैनम, ये मेरा दशमांश है, इसे कलीसिया में डाल देना। उसने कहा, क्या आप मेरे लिए एक हिरन मारेंगे? ओह, मैं वहाँ वे 3 हिरन खड़े थे और मेरी ये बंदूक मेरे कंधे पर थी। मैंने इसे कंधे पर से ऐसे सरकाया। मैंने सोचा वे मुझसे बच नहीं सकते, वे ठीक यहाँ हैं। मैं बंदूक के साथ बहुत तेज था। इससे पहले कि वे घूमते, मैं तीनों को ले सकता हूँ, समझे। मेरे पास बंदूक थी। मैंने सोचा वे ठीक यहाँ पर हैं। मैंने बंदूक सरका ली। तब ये हुआ कि मैं उस प्रतिज्ञा के विषय में सोचने लगा। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, मुझे स्मरण आया, एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, परमेश्वर ने योआब यानी शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया है। योआब ने दाऊद से कहा, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ना करे कि मैं उसके अभिषिक्त को छूऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं ये नहीं करूंगा। मैंने सोचा कि वे यहाँ ठीक चोटी पर हैं, मैं इन्हें नीचे तक नहीं ले जा सकता, हम इन्हें सरलता से उठा सकते हैं। 3 शानदार हिरन वहाँ खड़े थे। मैंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और यहाँ ये इस प्रकार से 2 नए जवान नर और मादा हिरन के बच्चे और एक माँ हिरनी और चलते हुए आ रहे हैं, चारों ओर देखते हुए, अच्छे मोटे ताजे। और मैं वहाँ थोड़ा सा खड़ा रहा और मैंने सोचा, हिरन के लिए ये विचित्र है, और मैं जो ये लाल कपड़े पहने हूँ, मैंने सोचा मैं उन्हें डरा दूंगा। मैंने कहा, तुम मेरे हाथों में हो, अगर तुम चाहो तो भी नहीं भाग सकते, परंतु मैं तुम्हारी हानि करने नहीं जा रहा हूँ, चले जाओ। उन्होंने एक दूसरे को देख और वे आगे बढ़ते रहे और वे मेरे बहुत पास आ गए, मेरी ओर देख रहे थे। मैंने बंदूक नीचे जमीन पर रख दी। मैंने कहा, माँ, अपने बालकों को लेकर जंगल में चली जा। मैं यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं दूसरों लोगों के लिए शिकार नहीं करूँगा। मैंने कहा, अब अपने बच्चों को ले जा और जंगल में चली जा। मैं भी जंगल से प्रेम करता हूँ, निकल जा। उसने मेरी ओर देखा और उन दोनों ने इधर उधर देखा। वे तीनों के तीनों फिर मुड़े और चले गए और फिर वे वापस आ गए। और मैंने कहा, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, जाओ, जंगल में चले जाओ, तुम मेरे हाथों में हो, तुम बच नहीं सकोगे। परंतु मैंने कहा, मैं परमेश्वर के हाथों में हूँ और फिर मैं अलग नहीं जा सकता, दोनों में से कोई एक। उसने मुझे बचा रखा है। मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जाओ, अच्छा समय वन में आनंद करो, मैं इसे पसंद करता हूँ, तुम आगे बढ़ो। वे वहाँ कुछ देर खड़े रहे और चलकर इतने समीप आ गए कि मैं लगभग हाथ से खिला दूं। घूमे और मेरी ओर इस प्रकार से देखा और चले गए। फिर खड़े होकर देखा, फिर जंगल में चले गए। और मैं वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने सोचा, हिरन के लिए ये असाधारण है। क्या ये इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति? और फिर एक आवाज मुझसे बोली, कहा, तुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है क्या? नहीं। मैं जान गया ये वो था। मैंने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, इसलिए मुझे भी याद है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। वो बोझ हट गया। मसीही मित्रों, ये तभी से है, ये पिछले अक्टूबर से था। मैं एक भिन्न व्यक्ति हो गया था। परमेश्वर से अपनी प्रतिज्ञा बनाए रखें। आप जो भी परमेश्वर से कहते हैं, आप इसका विश्वास करिए। उसके वचन के विरोध में कोई भी बात हो, उससे स्वयं को अलग रखें। परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं। क्या आप आज रात्रि स्वयं को सब प्रकार के अविश्वास से अलग रखने की इच्छा करते हैं कि प्रभु का वचन सुने? यदि आप ये करेंगे और इसका विश्वास करेंगे, तो वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। ये बातें जिन्हें उसने करने की प्रतिज्ञा की है, हम उसे ये करते हुए देखते हैं। क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे, परमेश्वर, आज रात्रि मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं हर वचन का विश्वास करता हूँ और मैं इस पर कोई संदेह नहीं करूँगा। हमारे स्वर्गीय पिता, आप जानते हैं कि कहानी सच्ची है। ये 4थी बार है और फिर 5वीं बार मेरी बहुमूल्य पत्नी के साथ। जब आप पिछले सप्ताह जब उस डॉक्टर ने ये वक्तव्य लिखा कि वो बड़ा फोड़ा डॉक्टर के छूने से पहले उसे छोड़ गया, ठीक उसी के अनुसार जो उसने कहा। अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों की सहायता करें। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्द ही जाना है और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मैं अपने भाइयों के साथ ईमानदार और निष्कपट रहूं।
मैं आपके लोगों के साथ ईमानदार और निष्कपट रहूं। यदि मैं उनके साथ ना रह सका तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं प्रभु आपके साथ रहूंगा प्रभु, क्योंकि मैं आपकी गवाही रखना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज रात्रि वचन को आप हम में वास करने देंगे, कि आप हमें सारा विश्वास देंगे। और इस छोटे से वरदान के द्वारा लोग कभी कभी सोचते हैं कि वरदान कुछ ऐसा है कि आप अपने हाथ में रखते हैं और बाहर जाते हैं और अपना मार्ग बना लेते हैं। पिता, वरदान ये है, ये समझ सकें कि वरदान स्वयं को मार्ग से अलग हटा देता है, ताकि पवित्र आत्मा जो वो करना चाहता है करे। प्रभु, अब हमें अपने आप से अलग हो जाने दें और महान पवित्र आत्मा आए और हमारे द्वारा कार्य करे, और होने पाए आज रात्रि हम यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को देखें, वो जिसका आज रात्रि मैंने विशेष उल्लेख किया है, कि वो जहाँ परमेश्वर अब्राहम के सामने नीचे आया, देह में प्रकट हुआ और हृदय के भेद को जान गया, ये परमेश्वर था। और जब वो देहधारी हुआ और हमारे मध्य में रहा, उसने हृदय के भेदों को जाना। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का वचन हृदय के विचारों को परखता है। इसी प्रकार से चेलों ने जाना कि वो परमेश्वर था। अब पिता, क्या आप आज रात्रि आएंगे और हमारे बेचारे नम्र मंदिर आपको समर्पित हों, कि आप हमें विश्वासी बनाएंगे कि ये आपका आत्मा आज रात्रि हमारे मध्य में स्वयं को प्रकट करे, कि आप अब भी वचन हैं। तब हम स्वयं को सारे अविश्वास से अलग करेंगे और आपका अनुकरण करेंगे। यीशु के नाम में आप हमसे बातें करें। आमीन। Even now does the Spirit of the Lord speak by this voice unto thee. Be thou encouraged. Thy vision shall be renewed. Thou shalt be strengthened in thy last days. Thou shalt run and not be weary. Thy youth shall be as the eagle that renews itself. The cry of the people is unto thee. Thy burden bringeth life, as the dry and the barren earth waiting for the rain. The people long it. Those that are bound, the cries of those in chains, waiting for thee. This voice came not because of the only, but because of those that hear thee. स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रहकारी हो, हमारी सहायता कर। ओ प्रभु, की आपकी आज्ञाओं का पालन करें और हमें अपने सम्मान के लिए प्रयोग करें। और हम आपका इन उत्साह बढ़ाने वाले वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, कि अब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करे और इन वचनों की पुष्टि करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, संदेह न करें, हिम्मत रखें, उसके आगमन का समय समीप आ रहा है। अब आज रात्रि हमारे पास प्रार्थना पत्रों का ढेर है। यहाँ कितनों के पास प्रार्थना पत्र हैं? अपने हाथों को उठाएं। मेरे लिए ये कठिन होगा कि झुंड में विचारों को परखते हुए निकलूं, यदि प्रभु इसे देगा। परंतु मैं एक क्षण लूं और ये कहता हूं कि कितने यहाँ ऐसे हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। अब प्रभु परमेश्वर आप में से प्रत्येक की सहायता करे। मैं आपका भाई हूँ, यीशु आपका बचाने वाला है, परमेश्वर हमारा पिता है, हम लोग हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, हम ऊपर के हैं। अब इसके पहले हमारी प्रार्थना पंक्ति हो, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। और यहाँ मंच पर एक व्यक्ति है आज रात्रि जो बीमारों के लिए भी प्रार्थना करता है, और बहुत से सेवक वहाँ हैं जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं ये असर नहीं डालना चाहता हूँ कि केवल मैं ही एक हूँ जो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है। समझे? परमेश्वर उसे मुझे ही प्रयोग नहीं करना है, वो आपको या किसी को भी प्रयोग कर सकता है।
बताएं। बात यह है कि विश्वास करें जो उसने कहा है वो सत्य है। परंतु अब जैसा कि मैंने इसे उचित ठहराते हुए कहा कि जो कहा गया है, एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं और आप बीमार हैं और प्रार्थना पत्र नहीं है, आप प्रार्थना करें और कुछ इस प्रकार से कहें, प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि बाइबल कहती है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। और ये भी कहा गया है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। यदि वो एक सा है तो उसे उसी प्रकार से व्यवहार करना है, वही करना है। और फिर बाइबल ने कहा कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है और विचार जो हृदय में थे उन्हें परख लिया। हम जानते हैं जब वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में ठीक वही जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया। यीशु ने संत यूहन्ना 14 में कहा, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, यहाँ तक कि और बड़े और अधिक, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और अब बाइबल इब्रानी की पुस्तक में ये भी कहती है कि वो अब महायाजक है। क्या हम सब ये विश्वास करते हैं? निश्चय ही वो हमारा महायाजक है जो कि हमारी दुर्बलता की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है। अब वो है, ना कि मैं हूँ, कोई मनुष्य नहीं। वो अब महायाजक है जो दुर्बलता की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है। अब यदि आप अनुभव करते हैं और कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं और स्वयं को अपने सारे अविश्वास से स्वतंत्र कर लें और कह रहे हैं मुझे आपको छूने दें, महान महायाजक। अब यदि वो महायाजक है और कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो वो वही व्यवहार करेगा जैसा तब किया था, क्योंकि वो एक सा है। एक स्त्री ने जब वो यहाँ पृथ्वी पर था उसे छुआ था, प्रकट रूप में अपने हाथों से उसने एक स्पर्श का अनुभव किया और घूमा और कहा, किसने मुझे छुआ? और उस सब ने मना कर दिया। परंतु उसने विचारों को परखा और उसने उस स्त्री को ढूंढ लिया, उसे बताया उसके साथ क्या गड़बड़ी थी और उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। अब वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। संभव है उस स्त्री के पास प्रार्थना पत्र ना हो, परंतु उसके पास विश्वास था। बस यही है जो आवश्यक है। विश्वास करें, महान डॉक्टर को छुएं दिव्य वरदान के द्वारा। यदि मैं स्वयं को बीच में से हटा सका तो पवित्र आत्मा को कहने दो जो वो करना चाहता है और जो वो करना चाहे करे। और ये एक वरदान है, ना कि कल्पना। यदि ये कल्पना है तो कार्य नहीं करेगा, यदि ये वास्तविक है तो कार्य करेगा। यही जो यीशु ने कहा, ये मैं नहीं जो कार्य करता है, ये मेरा पिता जो मुझ में रहता है। इसलिए ये मैं नहीं हो सकता। वो परमेश्वर का पुत्र था, मैं एक पापी, उसके अनुग्रह के द्वारा बचाया गया। बस विश्वास करिए, जोर न लगाएं, बस विश्वास करें और कहें, प्रभु यीशु मुझे अपना कपड़ा छूने दे। बस सादी प्रार्थना करें, बस प्रार्थना में रहें, हर कोई वहीं रहे जहां है। बस प्रार्थना करें और विश्वास करें। बस विश्वास करें और जल्दी ना करें, जोर लगाने का यत्न ना करें, बस विश्वास करें। अब क्या आप सब विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? बीते हुओं को भूल जाए, सोचें कि यीशु ने ये प्रतिज्ञा की है। मैं जानता हूं कि ये असाधारण है, परंतु यीशु ने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब यदि आप करते हैं, क्षण भर के लिए श्रद्धा में रहें, तब हम प्रार्थना पंक्ति आरंभ करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो ये करेगा, वो कर सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं उससे स्वतंत्र हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे अपने विचारों से हो सकता है वो। अब बस आप यदि अपना सर उठाना चाहते हैं और इधर की ओर देखिए और प्रार्थना में रहिए, जैसे कि पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरी ओर देख, नहीं हमारी ओर देख। ये अर्थ नहीं था, बल्कि उस पर ध्यान दे जो वो कह रहे थे। आप भक्तगण हैं, संभवतः कोई यहाँ होगा जिसे मैं जानता हूँ, सिवाय ये मार्टिन लड़के यहाँ बैठे हैं, और मैं सोचता हूँ कि भाई डॉल्टन यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं निश्चित नहीं हूँ। काला चश्मा जो आपने पहन रखा है, मैं उन्हें छोड़ने का यत्न करूँगा। लोग जिन्हें मैं नहीं जानता। अच्छा, संभव है यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य के साथ आए
ताकि आप देख सकें आज के दिन की प्रतिज्ञा पवित्र वचन में इस दिन के लिए भविष्यवाणी की गई है। यहाँ तक कि मलाकी 4 के अनुसार इसे पूरा होना चाहिए। किसी चीज को तो इसे करना है। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। There's a lady sitting right here. She's on her road to the hospital tomorrow. वहाँ एक महिला बैठी हुई है। कल वो अस्पताल जाने वाली है। उसकी दुर्घटना हो गई, वाहन दुर्घटना। उसने स्वयं को चोट मार ली। अंदर की परेशानी, खराब हाथ। आपके पास नहीं है। महिला, आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपके पास नहीं है। क्या मैं आपके लिए पूरी रीति से अपरिचित हूँ? मैं आपको नहीं जानता। हम एक दूसरे को नहीं जानते। श्रीमती जी, मुझे प्रचार करते सुना है, परंतु आप जानती हैं मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता। क्या ये बातें सत्य हैं? यदि हैं तो अपना हाथ उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, विश्वास करें। आपको जाना नहीं होगा। आपकी परेशानी समाप्त हो गई है। महिला ने क्या छुआ? वहाँ एक व्यक्ति ठीक इस महिला के पीछे बैठा है। क्या आप ज्योति नहीं देख सकते? उस बैंजनी प्रकाश को देखें। ज्योति चल रही है। ये व्यक्ति महिला के ठीक पीछे बैठा है। वो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये एक भाई है जो अस्पताल में है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके भाई को चंगा कर देगा? उसकी संतुलित मानसिक अवस्था को वापस कर देगा और हर चीज उसे ठीक कर देगा? क्या आप ये विश्वास करते हैं? मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। क्या ये ठीक बात है? ये विश्वास ठीक है, आप ले सकते हैं। इसने क्या छुआ? यहाँ एक महिला है ठीक वहाँ पीछे, यहाँ पीछे बैठी है। उस ज्योति को देखें। क्या आप इसे देख सकते हैं? इधर देखें। देखो, हर कोई उधर देखे, जैसे व्यंजनी सा दिखने वाला चक्र। ठीक उसके नीचे ये महिला है। वो यहाँ है। वो किसी के लिए प्रार्थना कर रही है। ये 2 बालक, पोते और परपोते। महिला यहाँ से नहीं है, वो कैलिफोर्निया से है और वो यहाँ प्रार्थना के निवेदन के लिए आई है। वहाँ उसके साथ कोई और भी है। ये उसकी बहन है। वो यहाँ पीछे लाल कपड़ों में बैठी है। उसे मिर्गी है। ये ठीक बात है। वो कैलिफोर्निया से है। आप उसे अपने साथ लाई हैं। आपका नाम मैरी है। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? क्या ये बातें सत्य हैं? यदि ये सत्य है तो अपना हाथ हिलाएं। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? तब आपको जो आपने मांगा है मिल सकता है। अब कोई भी लोगों से पूछ सकता है कि यदि मैं इनको जानता हूँ। महिला, क्या आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपके पास नहीं है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। विश्वास करेगा कि परमेश्वर उसके घुटनों को चंगा कर देगा, तो वो जिस विषय में प्रार्थना कर रहा है उसे मिल जाएगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है, आपके घुटनों की परेशानी खत्म हो गई है। श्रीमान, आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपके पास प्रार्थना पत्र नहीं है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं। अब यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। एक महिला यहाँ बैठी है। उसे स्त्री रोग है। क्या आप विश्वास करती हैं? हाँ महिला। ओह प्रभु, वो इसमें चूकने जा रही है। लाल कोट पहने हैं। उसका नाम कुमारी डेली है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, प्रभु यीशु आपको चंगा करता है। कुमारी डेली, मांगिए। यदि आप महिला को जानते हैं, मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। स्वर्गीय पिता ये जानता है। आप कहते हैं, आपने क्यों उसका नाम पुकारा? यीशु ने कहा, तेरा नाम शमौन है, तू योना का पुत्र है। क्या ये ठीक है? अब क्या ये वो नहीं जो कल, आज और सर्वदा एक सा है? क्या आप इसका सत्य होने का विश्वास करते हैं? अब यीशु ने क्या कहा? ये होगा। अब स्मरण रखें, ये अंतिम चिन्ह था जो चुनी हुई कलीसिया को दिया गया। अब्राहम और उसका झुंड। इसके पहले की प्रतिज्ञा का वो पुत्र प्रकट हुआ। क्या ये ठीक बात है? परमेश्वर ने यात्रा में अब्राहम को चिन्ह दिए और इसी प्रकार से कलीसिया को। परंतु जब प्रभु का दूत नीचे आता है और ये करता है, उसने अविश्वासी अन्य जातियों को नाश कर दिया और आशा किया हुआ पुत्र जिसकी प्रतिज्ञा की जा रही थी प्रकट हुआ, इसहाक। ये सेवकाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी और आशा किया हुआ पुत्र स्वयं प्रकट होगा।
कलीसिया लूथर के द्वारा न्यायोचितता से आई, पवित्रीकरण वेस्लियों के द्वारा होते हुए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में पेंतिकोस्तलों के द्वारा, और अब चोटी के पत्थर की सेवकाई में सारे समय के नमूने से उस सिद्धता में छाया प्रति से प्रत्यक्ष छाया में बदल रहा है। तब यीशु अपनी कलीसिया को लेने आएगा किसी दिन। वे जो उसका विश्वास करते हैं स्वयं को अविश्वास से अलग करें और आज रात्रि विश्वास करें। क्या आप ये करेंगे? वे जिनके पास अब प्रार्थना पत्र हैं आरंभ कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैंने 25 तक प्रार्थना कर दी है पिछली रात्रि। क्या ये ठीक बात है? मैं सोचता हूँ कि ये तय किया गया था। नंबर 1 25, अब 26, 27, 28, 30 यहाँ पंक्ति बना लें। प्रार्थना पत्र नंबर 1 के साथ यहाँ इस ओर पंक्ति बना लें। क्या अब आप ये करेंगे? अब बिना प्रार्थना पत्रों के विचारों का परखना। लोग कहते हैं कि उनके प्रार्थना पत्रों पर जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा था। उन लोगों के पास कोई प्रार्थना पत्र नहीं था, वे बस लोग वहाँ बैठे हुए थे। और अब ये आगे बढ़ता है। कितनों ने ये देखा था? ये आधे घंटे या इस प्रकार से चलता था और घटनाएं घटित होती हैं। परंतु आप देखते हैं हमें थोड़ी सी सामर्थ्य रखनी है। मेरी 41 सभाएं हैं जो आगे करनी है नीचे दक्षिण में। अब आप अपने प्रार्थना पत्रों के साथ इधर आ जाएं, इस ओर आ जाएं। सारे ए प्रार्थना पत्र के साथ यहाँ इस ओर आ जाएं। प्रार्थना पत्र ए। अब हम बाकी सब परमेश्वर के लिए गाएं। केवल विश्वास। क्या ये आप करेंगे? हम सब एक साथ केवल विश्वास करें, जो उसके वचन का विश्वास करें। केवल विश्वास। सारी चीजें संभव हैं केवल विश्वास, केवल विश्वास। प्रभु संभव है मैं वहां पर कदम रखूं। हो सकता है ये अच्छा होगा। क्या हम वहां बीमारों के लिए प्रार्थना के लिए जा सकते हैं? वहां जाएं, बीमारों के लिए प्रार्थना। लगता है हम जा सकते हैं। कितने लोग इन लोगों की चंगाई में रुचि रखते हैं? अब देखिए, चंगाई परमेश्वर की है। क्या ये ठीक बात है? अब यदि आज रात्रि यीशु यहाँ खड़ा हो इस पोशाक सूट के साथ जो उसने मुझे दी है, और वह स्वयं इस सूट को पहने हुए होता, यदि आप ये कहते प्रभु क्या आप मुझे चंगा करेंगे, वो कहता मैं ये पहले ही कर चुका हूँ, वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। क्या ये ठीक बात है? देखिए, उसने ये पहले ही कर दिया, ये भूतकाल में है। आप कहते हैं प्रभु मुझे बचा, उसने ये पहले ही कर दिया। कोई मतलब नहीं कि आप कितना चिल्लाते या प्रार्थना करते और बेंच पीटते हैं, ये आपको नहीं बचाएगा जब तक आप विश्वास और स्वीकार नहीं करेंगे जो उसने आपके लिए किया है। क्या ये ठीक बात है? ये वही चीज है। मैं लोगों को चंगा नहीं करता, मैं लोगों को चंगा नहीं कर सकता, परंतु वो जो करेगा, यदि वो कल आज और सर्वदा एक सा है, वो वही करेगा जो उसने किया, क्योंकि यही जो उसने आज के लिए प्रतिज्ञा दी है। कितने ये जानते हैं कि उसने यही प्रतिज्ञा दी है? वो प्रतिज्ञा दे चुका है। जी हाँ श्रीमान, उसने प्रतिज्ञा की है सारे पवित्र वचनों में। आप टेप लें, 7 कलीसियाई काल और आदि आदि, देखिए वचनों द्वारा ये बातें सिद्ध की गई हैं कि ये ठीक हैं। अब आप जो इस प्रार्थना पंक्ति में खड़े हैं और विचारों को परखने वाली पंक्ति में आए हैं, यीशु ने एक दर्शन देखा और उसने कहा मुझे प्रतीत होता है कि सामर्थ मुझ में से निकली है, ये शक्ति। क्या ये ठीक बात है? दर्शन आप दूसरे संसार में हैं, अब वो यहाँ पर है। ये वो है जिसे आपने छुआ, समझे? अब ये केवल ये प्रमाणित करता है कि वो यहाँ पर हमारे साथ है। अब कितने विश्वास करेंगे यदि हम इस पंक्ति में से निकलेंगे और मुझे प्रार्थना करने दें और आपके ऊपर हाथ रखने दें और आप अपने बैठने के स्थान पर वापस जाएंगे? क्या विश्वास करते हैं यदि मैं यहाँ आपके लिए प्रार्थना करूंगा और फिर आपके ऊपर हाथ को रखूं, आप में से प्रत्येक चंगा हो जाएगा? क्या विश्वास करते हैं कि ये पवित्र आत्मा यहाँ पर था, ये इसे यहाँ करता रह सकता है यदि आप इस पंक्ति मूल्य चाहते हैं और इससे कुछ और अधिक होता रहे? हम ये क्यों करेंगे? देखिए, यही जो पवित्र आत्मा यहाँ पर है, समझे? ये नहीं, ये केवल आपके सोचने पर है, यदि ये आपसे अधिक विश्वास करवा सके। परंतु बहुत से लोगों को सिखाया गया,
उन पर हाथ रखूं। बाइबल ने कहा उसने अपना वचन भेजा और उन्हें किया। अच्छा, यही जो उसने किया, अपने वचन की पुष्टि करी, आपके पास भेजा, इसकी पुष्टि की और इसने इन्हें चंगा किया। अन्य जातियों ने कहा, यहूदियों ने कहा, आ और मेरी पुत्री पर हाथों को रख, वो जीवित रहेगी। रोमियों ने कहा, मैं योग्य नहीं कि तू मेरी छत ले आए, बस वचन कह दे। ओ, यही वो है जिसका मैं आपसे विश्वास करवाना चाहता हूँ। आप देखिए, परंतु यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं और हाथों को आपके ऊपर रखूं, अब मैं चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे साथ सम्मिलित हो। लोगों के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, अब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वे इस बात में जागरूक हैं कि आप यहाँ खड़े हैं। वे जानते हैं कि आप लोगों के बीच में हैं। और जब आज रात्रि ये लोग इस प्रचार मंच से निकलते हैं और मेरे पास से होकर या दूसरों दासों के पास से जो आपके यहाँ बैठे हैं, ये इसे अनुभव करें कि ये जीवित परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं। ये उस प्रतिज्ञा के तले आ रहे हैं जो परमेश्वर ने कही, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। जब वे अपने हाथ बीमारों पर रखते हैं तो वे चंगे हो जाते हैं। उसने ये प्रतिज्ञा की है, उसने ये प्रतिज्ञा दी है कि हर व्यक्ति जो विश्वास करेगा बच जाएगा, और हर व्यक्ति जो विश्वास करता है बच गया। हर वो जो चंगाई में विश्वास करता है चंगा हो गया। पिता, अब हमारे अविश्वास में सहायता कर। आपने प्रमाणित कर दिया है। आज रात्रि आप स्वयं वचनानुसार यहाँ पर हैं कि हमें दर्शाएं कि आप यहाँ पर हैं। और अब ऐसा घटित हो कि हर व्यक्ति जो इस मंच पर आए या इस भक्त मंडली या कोई भी दुर्बल व्यक्ति यहाँ हमारे मध्य में ना हो जब हमारी सेवा पूरी हो। महान पवित्र आत्मा उसके लोगों के मध्य में आए और हमारा अभिषेक करे हर एक का। प्रभु, ये सारे सेवक गण और आपके सारे सेवक गण यहाँ पर बैठे हैं, सैकड़ों के लगभग। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी हर प्रार्थना आपके पास पहुँचे जबकि हम आपकी दिव्य उपस्थिति में हैं, और ये लोग समझ सकें जैसे कि ये इस प्रचार मंच से निकलते हैं कि आज रात्रि उनकी चंगाई की रात्रि हो, यदि ये इसका विश्वास कर सकें। अब मैं चाहता हूं कि प्रत्येक निरंतर प्रार्थना में रहे जैसे कि लोग यहां से होकर निकलते हैं, और चंगाई के लिए मैं प्रत्येक पर हाथ रखूंगा। आइए श्रीमान, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा भाई यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा भाई यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। मैं अपनी बहन के लिए यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में अपनी बहन की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी बहन के लिए यीशु के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी बहन के लिए यीशु के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपने भाई के लिए यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी बहन के लिए यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपने भाई के लिए यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं यीशु के नाम में अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप उसे चंगा करेंगे। मैं यीशु के नाम में अपने हाथों को भाई पर रखता हूं कि उसकी चंगाई के लिए। यीशु के नाम में मैं अपने हाथों को भाई पर उसकी चंगाई के लिए रखता हूं। अपने हाथों के साथ जो भाई पर रखे हैं, मैं इसकी चंगाई को मांगता हूं यीशु के नाम में, जबकि यह आपकी दिव्य उपस्थिति में यहाँ आपके अभिषेक में है। Heavenly Father, as a great host of people are praying, we recognize your presence. Heal this sister, I pray, in Jesus' name. Heal my sister, in Jesus' name, I pray. I lay hands upon my brother, commemoration of your word, for his healing, in Jesus' name. Let it be so, Father. These signs follow them that believe. When you lay your hands on the sick, they shall recover. Grant the healing of my brother, Father, as I lay hands upon him in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon sister for the healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon my sister for the healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon my brother for his healing. I bless this, my brother, in the name of Jesus Christ, for faith for healing. Lord Jesus, I lay my hands upon the child, that you heal his body and make it well. You do it, Father, you promise. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Please, you'll be all right. You believe that? You believe that? In Jesus' name, let our sister be healed. Lord, in the name of Jesus Christ, let the child be healed. No doubt. Believe it. Father, heal this little sister, I pray, in Jesus' name.
Place the feet. Father God, I lay hands upon my brother. In the name of Jesus Christ, let him be healed. Father, I lay hands upon my brother. In the name of Jesus Christ, let him be healed. Father God, with hands laid upon my brother, I ask in Jesus' name for his healing. Likewise upon my brother here, Father, with my hands I place commemoration of your word, and that's for his healing. In the name of Jesus Christ, I ask for the healing of my brother. In the name of the Lord Jesus Christ, I ask for the healing of my sister. Be it be so. Lord, I pray that you heal my sisters. In the name of Jesus Christ. Sister Shay, God bless you. Heavenly Father, I pray for my sister Shay that you will heal her in Jesus' name. Heavenly Father, I lay hands upon this sister in the name of Jesus Christ for her healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon her sister for her healing. Heavenly Father, I lay hands upon this sister. You said do it. And I do it because I believe you. I connect myself, my faith, my soul with her, and ask for her healing. On this little boy, I lay hands in Jesus' name and ask for his healing. I lay my hands upon this sister. In Jesus' name, I ask for her healing. Heavenly Father, I lay hands upon this sister. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. Father, I lay hands upon this little girl. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. Heavenly Father, I lay hands upon this little boy and ask for his healing in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, I lay hands upon this little girl in Jesus' name and ask for her healing. Sister, God bless you. Here's a lady certainly knows what healing was. She was brought back to life 15 years ago in the ground. 17 years ago, died with cancer in her heart. The doctor has a record of it here. Mrs. Waldo. How many knows that to be so as being true healing? Heavenly Father, your healings are lasting as long as we believe. I pray for Sister Waldo. Make her well. In Jesus' name. Bless you, sister. Heavenly Father, I ask for the healing of my brother in the name of Jesus Christ. Amen. Father, I lay hands upon this little boy. In the name of Jesus Christ, I ask for his healing. Father, I lay hands upon my sister in Jesus Christ's name for healing. Father, I ask mercy and healing for my sister. Grant it to her tonight. I lay my hands upon her to connect myself with my prayer. In Jesus' name. Heavenly Father, I lay hands upon my sister. Believing my prayer, she's believing too. Better be healed, Father. In Jesus' name. Heavenly Father, lay hands upon my brother here. Also, believing our prayer. All of us praying together, Father. We believe that this is going to happen. I ask in Jesus' name. Heavenly Father, with hands up on this sister, I ask for her healing in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, again, upon the body of this little brother standing here, I lay my hands, believing that you hear. And my prayer with his, with all this church, we believe that you will heal him. In Jesus' name, bless you, brother. Heavenly Father, I pray for the healing of my sister. With hands upon her, my heart goes out for them, Lord. Have mercy and heal in Jesus' name. Heavenly Father, this sweet little girl passes through life. Through the friend. I lay hands upon her in the name of Jesus Christ, who laid his hands upon her children and blessed them. May she be blessed and healed. In Jesus' name. Heavenly Father, laying hands upon our sister as she passes by. In the name of Jesus Christ, let her be healed.
Likewise, upon this sister, Father, I lay hands in the name of Jesus Christ. Father, I lay hands upon my brother in the name of Jesus Christ. मेरी इस बहन को चंगा करें पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ये चंगा हो जाए। इस प्रकार से पिता, मैं अपने भाई के ऊपर अपने हाथों को रखता हूँ। यीशु के नाम में ये चंगा हो जाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं अपने हाथ अपनी बहन पर रखता हूँ, ये चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम, हमारे पिता, मैं अपने हाथ को इस भाई पर रखता हूँ और उसकी चंगाई के लिए यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने हाथ अपने भाई पर रखता हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी चंगाई मांगता हूँ। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं अपने हाथों को भाई पर रखता हूँ और उसकी चंगाई मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना को इसकी प्रार्थना से जोड़ दें और कलीसिया की प्रार्थना जिसे आज रात्रि आपने एकत्र किया है, मेरे हाथ इस पर परमेश्वर के पुत्र में मेरे विश्वास को प्रमाणित करें और मैं इसकी चंगाई मांगता हूँ। आमीन। अब हमारे पास पहिए वाली कुर्सी के मामले हैं प्रार्थना करने के लिए। एक बार यीशु ने कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने वही किया जो परमेश्वर ने करने को कहा। अब आइए हम मिलकर हर एक प्रार्थना करें। जैसे कि आप अपना ध्यान परमेश्वर पर रखते हैं, अपनी प्रार्थना को थामे रहें, स्मरण रखें, अविश्वास करें, हमारे साथ विश्वास करें। आप में से प्रत्येक जो यहाँ पर है, जो बीमार है, और हो सकता है आपके पास प्रार्थना पत्र ना हो। अब हम फिर से प्रार्थना पत्र बांटेंगे आने वाली रात्रि 6:30 या 7, कुछ इस प्रकार से 6:30-7। इसलिए हम आने वाली रात्रि फिर से प्रार्थना पंक्ति लेंगे। मुझे खेद है, आज रात्रि मैंने प्रार्थना पंक्ति के लिए आपको थोड़ी अधिक देर रोके रखा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हम अपने सिरों को फिर से झुकाएंगे। पिता, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने विरोध में हर व्यक्ति के पाप को क्षमा करते हैं। यदि हम में कोई चीज पाई जाती है जो आपको पसंद नहीं, प्रभु हमें क्षमा करें, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमें परमेश्वर की लिखित पत्री होना है जो सब मनुष्यों के द्वारा पढ़ी जाए। जैसे कि हमने आपकी आज्ञाओं को माना है, आपकी उपस्थिति को देखा है और स्वयं को हमारे साथ प्रमाणित कर रहे हैं। लोग इस प्रचार मंच पर अपने विश्वास को प्रमाणित करने आते हैं। हमने उनके ऊपर अपने हाथ रखे हैं पिता, न कि जैसे हम में से एक, परंतु हम सब एक साथ प्रार्थना में हमने अपने हाथ उन पर रखे हैं, ये विश्वास करते हुए आप उनकी देहों को चंगा करेंगे। आपने कहा जब आप यहाँ पृथ्वी पर थे, यदि तुम पिता से कुछ भी मेरे नाम से मांगो तो मैं करूँगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र, प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है। और वो जिसने स्वयं को प्रमाणित करने की प्रतिज्ञा दी है, यहाँ आज रात्रि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। इसलिए यहाँ किया गया है आपकी आज्ञाएं, बीमारों पर हाथों को रखना, और अब ये होने दें। ये लिखा हुआ है, ये होने दें। आज रात्रि यीशु मसीह की सामर्थ आए और हर व्यक्ति को यहाँ अविश्वास से अलग करे, और यीशु मसीह की उपस्थिति, वो वचन जो हमारे हृदय के विचारों को जानता है, आज रात्रि प्रत्येक हृदय में उत्कर्ष होने दे। और हम शैतान को फटकारते हैं और उसकी अंधकार की सारी सामर्थ्यों को। शैतान, परमेश्वर के आत्मा ने तेरे विरुद्ध अपने स्तर को ऊंचा कर दिया है। तू हारा हुआ जीव है। यीशु मसीह ने तुझे कलवरी पर हरा दिया। वो तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु, अधोलोक और कब्र पर जयवंत हुआ। वो ऊंचे पे चढ़ गया और मनुष्य को दान दिए। आज रात्रि वो यहाँ व्यक्ति में है
उसने कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर। आज रात्रि हम उसकी उपस्थिति को यहाँ देखते हैं, उसके वचन को पूरा होते हुए। विश्वास के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि यहाँ हर बीमार व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाएगा। और लोगों ने कहा, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। वापस भाई को